हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी सीए फाइनल एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स की मई 2021 की इस अमेंडमेंट क्लास में. The amendments for May 2021 both for the new course as well as the old course can be categorized into three parts. One, Code of Ethics 2020 जो 2009 Code of Ethics का एक मेजर अपडेट था जिसको पहली बार May 2021 अटेम्प्ट से एप्लीकेबल किया जा रहा है. Use lot of minor microscopic changes here and there, all discussed in a live amendment lecture which was taken way back in January 2021. It covered every amendment except relating to ethical standard board and ISBA, जिसके लिए एक separate video already share किया जा चुका है through Google Drive. Link will be given in the description if you have not got it. Second, which is this video, is a peer review and quality review. Quality review, there been major changes. It can be said कि almost completely change हो चुका है. Peer review जिसके ऊपर एक 10 मार्क का MCQ भी पूछा गया था पिछले अटेम्प्ट में, उसमें भी कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं और ये सारे चेंजेस पहली बार May 21 से एप्लीकेबल हो रहे हैं. This video is going to cover peer review as well as quality review along with study material 2021 questions relating to these two topics. And MCQ book में जो इसका केस सिनेरियो बेस्ड MCQ शेयर्ड है, even that is going to be covered in this video. Third, I can say is the amendment due to A, amendments in law like RBI के कुछ provision change हुए तो NBFC के कुछ provisions या norms change हो गए like categorization of NBFCs or certain disclosure requirements or reporting requirements. Similarly, fiscal law के changes के कारण tax audit में कुछ provisions change हुए. These are all minor amendments, no major ones. प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस स्टडी मटेरियल 2021 में कुछ जगह इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल के कंटेंट को अपडेट किया, लाइक स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट से इंटरनल ऑडिट की कुछ डेफिनेशन और प्रोविजंस इंटरनल ऑडिट के आपके स्पेशल ऑडिट के चैप्टर में इंक्लूड किए. ऐसे कुछ इधर उधर थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स और अपडेट्स, because these are due to law as well as changes in the study material 2021, will be something which we will cover in the third lecture. So lecture 1 already done, having two parts of ethics 2020. Lecture 2, this one for peer review and quality review, and lecture 3 would be for all the other remaining set of amendments. इसके अलावा I can say there could be one more bonus lecture which could be to cover or rather give you a guidance about study material 2021 new questions added. No major new questions added. Most of them are from the RTP, MTP or the past practice manual. I mean they were already kind of there somewhere or the other. Plus Institute ने एक ऑडिट की केस स्टडी बुकलेट जारी करी है जिसमें 100 इंडिविजुअल केस स्टडीज, इनफैक्ट आई शुड से इंडिविजुअल एमसीक्यूज और 30 केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज जिसमें 3 से 6 क्वेश्चंस एक एमसीक्यू के केस में शेयर किए गए. इसमें आपको कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली यू विल हैव टू have some guidance so that you can quickly kind of cover it up and focus on the important things so that you can be more efficient in your planning. So maybe one video which will be giving you a guidance on how to deal with new study material 2021 questions, very few, and how to deal with the MCQ booklet of ICA. चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, विच इज गोइंग टू बी पीयर रिव्यू. एंड पीयर रिव्यू का हमारा डिस्कशन प्राइमरली रन थ्रू होगा फ्रॉम द ड्रोन चार्ट्स विच विल अगेन बी शेयर्ड in the fast.edu.in website. Again, links in the description. You can download it from there. ये ड्रोन चार्ट सारे स्टूडेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं. जिन लोगों के पास अभी अपडेटेड ड्रोन चार्ट्स गए हैं उनके पास ऑलरेडी ये अमेंडमेंट्स टू अ लार्ज एक्सटेंट कवर्ड हैं. हाउएवर आई विल स्टिल सजेस्ट कि इसमें हमने नए क्वेश्चंस भी इनकॉर्पोरेट किए हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि सभी लोग इसी ड्रोन चार्ट को रेफर करें. Before we start, just a small quick word about the circumstances going on. These are times where you need to be very, very patient, alert, kind. Patient to let this time pass off safely for all of us. Alert so that we kind of avoid this particular infection for us and all the ones whom we really care. And in case, unfortunately, anybody gets it, we kind of get them the timely treatment which is available so that, we can actually minimize the loss which this infection could cause, and being kind in terms of being considerate and helping to whatever extent we can. Any which ways, these are times where you just cannot just have your focus on studies. I do agree with so many things running around. So you will have to have that kind of buckets in your mind where when you are studying, you will have to concentrate on your studies, and when you are actually keeping an eye on well-being of all the people whom you care, you will have to concentrate on those things. You will have to play those multiple roles.
एनी विच वेज अपन अपने कर्म किए जाते हैं दोस्तों, और शुरुआत करते हैं पीयर रिव्यू से। पीयर रिव्यू का आपका चैप्टर हम शुरुआत से, इनफैक्ट 2002 से पीयर रिव्यू एज सच इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया है, राइट फ्रॉम व्हेन दी एनरॉन फ्रॉड हैपेंड इंटरनेशनली, जहाँ पे अकाउंटेंट्स के ऊपर सवाल खड़े किए गए थे और सवाल ये पूछा गया कि भाई हम कैसे इंश्योर करें कि अकाउंटेंट अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ इट ये डिसाइड किया गया कि आईसीआई ही अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिव्यू करेगा और मॉनिटर करेगा कि वो लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, और नहीं करेंगे तो सजेस्ट करेगा मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट और उन्हें सुधरने का मौका देगा। सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। ये इंट्रोड्यूस हुआ 2002 में। उसके बाद 2013 में नया कंपनीज एक्ट आया, जिसमें टू अ लार्ज एक्सटेंट दिखाया गया कि भैया हमारा कॉन्फिडेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीए इंस्टीट्यूट की अनरेगुलेटेड कॉम्पिटेंस पर थोड़ा कम है, बिकॉज सत्यम जैसे फ्रॉड्स हुए हैं और भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, जिस कारण से हम खुला नहीं छोड़ सकते इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कि भैया तुम किसी भी रेगुलेटर के द्वारा रेगुलेटेड नहीं हो इंडिया में, जबकि यूएस और ऐसी कई सारी कंट्रीज में there are regulatory bodies who keep an eye on the chartered accountants, like there is a PCAOB, Public Companies Accounting Oversight Board in the US under the Security Exchange Commission, जो मॉनिटर करती है लिस्टेड कंपनीज, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के CPAs who are practicing and auditing those particular entities or providing any kind of attestation services। ये सब टर्म्स अपन समझेंगे। तो इंडिया में भी कहा गया कि भैया ऐसी एक बॉडी बनाई जाएगी जिसको नाम दिया गया नफरा। इंस्टीट्यूट ने अपने पीयर रिव्यू स्टेटमेंट को तब रिवाइज भी किया 2012 में और कहा जरूरत नहीं है, हम अच्छे से मॉनिटर करेंगे, हम देखिए इसे और अपडेट कर रहे हैं। बट फाइनली नफरा आ गया 2013 में। कई समय तक हमने पुश किया कि वो एप्लीकेबल ना हो, बट देन फाइनली कपल ऑफ इयर्स अगो नफरा के प्रोविजंस को भी इफेक्टिव कर दिया गया। अब आज की तारीख में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्योरली अनरेगुलेटेड फ्रॉम एनी रेगुलेटरी बॉडीज नहीं है। आज भी हमें प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी सरकारी संस्थान की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस शुरू करने के बाद अब हमें हो सकता है कि कोई रेगुलेटरी बॉडी ही रेगुलेट करना शुरू कर दे। और ये कौन कर सकता है? तो दिस इज समथिंग विच कैन प्राइमरली बी डन बाय नफरा। कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शंस लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के अगेंस्ट में इनिशिएट करना है, या लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, या कोई भी इन्वेस्टिगेशन किसी भी शक के दायरे में आ रहे किसी प्रैक्टिसिंग सीए या सीए फर्म के ऊपर इनिशिएट करना है, तो नफरा को उसके पावर्स दिए गए। अगर ये व्यक्ति ऐसी एंटिटीज का ऑडिट करते हैं जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, लाइक बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, लिस्टेड कंपनीज, लार्ज कंपनीज, तो इसके लिए नफरा बनाया गया। ऑब्वियसली बात है, नफरा एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी है, तो अगर उसने पाया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने काम अच्छे से नहीं किया है तो उसके ऊपर पीनल प्रोविजंस इनिशिएट किए जाएंगे और उसकी प्रैक्टिसिंग यू कह लीजिए एलिजिबिलिटी को भी अफेक्ट कर दिया जाएगा। बट देन एक स्टेप अगर मैं पीछे चलूं तो मैं ये कहूंगा कि नफरा पिचिन कहाँ करेगा? तो आई हैव 3 लाख प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आउट ऑफ विच आई वुड हैव सम अराउंड 80,000 प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स who should be practicing. And keeping an eye on these many chartered accountants who are practicing could be a real difficult task. So Nafra said, I will only look after certain set of entity auditors and not all auditors. तो सवाल ये उठा कि भाई what about those auditors who are not looked after by Nafra? तो इसके लिए एक क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बनाया गया। Quality Review Board is a semi or a quasi government body which has 11 members, जिसमें से 6 सरकार के और 5 ICI के होते हैं। अनलाइक नफरा जो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड होती है, हालांकि नफरा के कॉन्स्टिट्यूशंस में भी हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को शामिल किया गया। तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड विच इज अनदर चैप्टर क्या कहता है? आई एम जस्ट गिविंग यू होलिस्टिक पिक्चर सो दैट यू रियली फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 थिंग्स इन चैप्टर्स, एंड अकॉर्डिंगली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप एग्जैक्टली समझ सको कि आपको किस पर्सपेक्टिव में आंसर देना। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इज एक्चुअली अ बोर्ड विच इज अ सेमी regulatory authority because it has representations from central government as well as ICI council. क्वालिटी रिव्यू बोर्ड उन लोगों को देखेगी जिनको, या उन सीएस या प्रैक्टिसिंग सीएस को देखेगी जो नफरा की कवरेज में नहीं आते, लेकिन क्वालिटी रिव्यू बोर्ड चाहता है कि हम उन्हें किसी कारण से कवर करें जस्ट टू इंश्योर कि ये लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं।
और अगर इसे पता पड़ता है कि ये काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो इनके पास पावर है कि ये सीधे रेकमेंड कर सकते हैं कि इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे डिसिप्लिनरी एक्शंस इनिशिएट किया जाए, चाहे तो वार्निंग देके छोड़ भी सकते हैं. Unlike both of these, what we also have is something called as the peer review board. Now, peer review board is just basically a board of ICI. इसमें सिर्फ और सिर्फ CA इंस्टीट्यूट के मेंबर्स हैं. Unlike क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जहां पे दोनों का रिप्रेजेंटेशन है, जहां मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पीयर रिव्यू बोर्ड किसके ऊपर रेगुलेशन लगाएगी? तो ये वो सारे के सारे सीए फॉर्म्स पे रेगुलेशन लगाएंगी जो प्रैक्टिसिंग है. भले ही वो नफरा के अंदर कवर होते हो या क्यूआरबी उसे कवर करती हो. यानी आप ये कह सकते हो कि नफरा और क्यूआरबी अपने आप में दोनों की वर्किंग क्या है? इंडिपेंडेंट है. यानी जो नफरा में कवर होगा वो क्यूआरबी में कवर नहीं होगा. बट पीयर रिव्यू बोर्ड सारे प्रैक्टिसिंग सीएस के ऊपर अपनी क्या करेगी? नजर रखेगी और इंश्योर करेगी कि सारे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपना काम क्या एज पर इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस, नोटिफिकेशन, स्टैंडर्ड, स्टेटमेंट, गाइडेंस नोट्स, रूल्स, रेगुलेशंस कर रहे हैं या नहीं, और साथ ही साथ में क्या उनके यहाँ पे प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स मौजूद है या नहीं, जिससे कि हम इंश्योर कर सकें कि आगे भी उनके काम ऐसे होते रहेंगे. यानी कि peer review board practically covers up what? All CS who are obviously in practice. This will cover CA in practice of specified entities, and this is something which will cover CA in practice of I should say CA in practice who are auditing specified entities, and they will cover CA in practice who are basically other than those which are regulated by NAFRA. Now, what is the objective? Here the objective is to identify any shortcomings in the work or quality of CA in practice, and accordingly initiate disciplinary or legal or penal actions against them. Unlike peer review, here where the objective is to ensure qualitative services are provided. By all CAs who are in practice. तो आप देखो ऑब्जेक्टिव कितना अलग है. पीयर रिव्यू बोर्ड का उद्देश्य है कि मैं सारे सीए इन प्रैक्टिस को ये देखूं कि क्या वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको एडवाइस करके उनका काम सही करवाऊं, और अगर वो काम सही कर दे तो हम डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट नहीं करेंगे. And with this background, now I can start with my discussion of peer review, because I want you to be in the right context, reading the right set of things. This will help you to kind of give your appropriate answers whenever you are giving any answer relating to peer review or quality review board or NAFRA. सबसे पहले अपन peer review से शुरुआत करते हैं बहुत ही सिस्टमैटिकली, क्योंकि अमेंडमेंट वाले प्रोविजंस हैं इसलिए मैंने मॉड्यूल के ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोविजंस को यहाँ पर कवर कर लिया. I have done very minimal deletions in terms of the language that the module has used. That is why you will find drone charts here to be a little more bulky, but still I have used my own discretion in terms of kind of skipping off unnecessary grammatical extensions of sentences without skipping any particular point in these drone charts. At the same point of time using a logical sequence which helps you to kind of understand these things well. तो peer review का मैंने आपको ये बताया, उसके हिसाब से आप बताओ क्या लगता है आपको ऑब्जेक्टिव क्या होगा. तो पीयर रिव्यू का ऑब्जेक्टिव तो यही होगा सर कि इंस्टीट्यूट के जितने भी स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस हैं वो सब वो फॉलो करें, और अपने यहाँ पे उनका प्रॉपर सिस्टम हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, जिससे कि ये प्रूव किया जा सके कि भैया उन्होंने अपना काम क्वालिटेटिवली किया. तो यही दो ऑब्जेक्टिव हैं. टू इंश्योर दैट इट कंप्लाइज विद टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स व्हिच आर एज एप्लीकेबल टू एनी सीएस इन प्रैक्टिस along with any other legal requirements, and also have in place proper systems including documentation to demonstrate quality of assurance service, यानी SQC standard on quality control का compliance. आपको एक ओवरऑल फंडामेंटल ध्यान रखना है पीयर रिव्यू के केस में कि हमारा उद्देश्य यहाँ गलतियां निकालना नहीं है, रादर क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव करना है.
सो पॉइंट टू बी हाईलाइटेड हियर इज वी आर हियर टू इंप्रूव योर सर्विसेज। तो हम यहाँ पे गलती निकलेगी तो सीधे आपके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट करेंगे, ऐसा जरा भी नहीं होगा। रादर हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू improve your services by basically hand in hand understanding what you are doing and then based on that giving you a report which will help you to assess what are your shortcomings based on which you can then improve। peer review में अपन पढ़ेंगे होता भी क्या है, peer review करने के लिए कोई CI आता है जो ICI भेजता है, आपका पूरा रिव्यू करके वो बताता है भाई ये शॉर्टकमिंग है, रिपोर्ट ICI के पास जाती है, एक समय दिया जाता है ठीक करने के लिए, फिर वापस से एक फॉलो ऑन रिव्यू होता है, तब तक आपने सब कुछ सही कर दिया है तो कोई एक्शन इनिशिएट नहीं होगा, नहीं किया है तो फिर आपके अगेंस्ट में एक्शन इनिशिएट होता है। तो यहाँ पे आपका उद्देश्य क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, टू इंश्योर कि हम स्टैंडर्ड्स के साथ साथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉलो कर रहे हैं, एंड देन इन केस अगर कोई नॉन कंप्लायंसेस कोई भी क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड से हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करें, नॉट एज अ वन ऑफ केस कि यार यहाँ गलती हुई है यहाँ गलती हुई है, एज अ सिस्टमिक इशू कि यार सिस्टम तो खराब नहीं है और उसको सुधारने की कोशिश करें। तो इफ यू गेट अ क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू, इस तरह का क्वेश्चन क्या आ सकता है, ऑफ कोर्स आ सकता है, इट हैज बीन आस्क्ड इन नवंबर 2008, नवंबर 2018, यानी अगला नवंबर 2028 में आएगा। बहुत बढ़िया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीयर रिव्यू, सीधे सीधे आपको आंसर देना पड़ेगा, शॉर्ट क्वेश्चन। दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ पीयर रिव्यू, लेट अस कम टू द डेफिनेशन ऑफ पीयर रिव्यू। वहां से अब मैं पूरे पीयर रिव्यू के आपके रिलेटेड टर्म्स और कॉन्सेप्ट और स्कोप और ऑब्जेक्टिव को आपके सामने रखूंगा और समझाऊंगा। इससे पहले एक बेसिक चीज समझो, पीयर रिव्यू होता क्या है। इट इज बेसिकली एन ऑडिट ऑफ ऑडिटर्स बाय द मदर ऑफ ऑल ऑडिटर्स, ICI। ICI जितने प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जो ऑडिट या अटेस्टेशन का काम करते हैं, यानी कि यू कह लीजिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करके उसके ऊपर ओपिनियन देते हैं, जिसके आधार पर कई सारे यूजर्स जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो उस पर रिलाई करते हैं और उसके ऊपर रिलाई करके कॉन्फिडेंस उसके ऊपर लेकर वो मान लेते हैं कि भैया किसी CA ने ऑडिट रिपोर्ट अगर क्लीन या अनमॉडिफाइड दी है तो इसका मतलब यहाँ पे जो बताया गया है ये एक रीजनेबल लेवल का एश्योरेंस दे रहा है, नॉट अ गारंटी कि सब कुछ सही है बट अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस कि यहाँ सब कुछ सही होना चाहिए। ऐसी कोई बेसिक एरर्स इसमें नहीं रही होंगी। तो जब आप ऐसा आश्वासन किसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर देते हैं, जैसे हम नॉर्मल भाषा में ऑडिट कहते हैं, तो ये पर्टिकुलर ऑडिट अगर आप कर रहे हो तो इससे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक तरह से सर्टिफाई कर रहे हो या अटेस्ट कर रहे हो या प्रूव कर रहे हो कि भाई ये सब सही है, जिसके बेसिस पे कई सारे स्टेक होल्डर डिसीजन ले रहे हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं, इस कंपनी को ज्वाइन करना है या नहीं, इस कंपनी को लोन देना है या नहीं, इस कंपनी के टैक्सेशंस क्या प्रॉपर है या नहीं, असेसमेंट प्रॉपर है या नहीं। इसलिए आपके पास एक बहुत बड़ा अधिकार, उसके साथ बहुत बड़ा दायित्व भी है कि आप ये काम अच्छे से करें। ICI जरूर चाहेगा कि वो समय समय पर, और जितना बड़ा ऑडिटर, क्या मतलब बड़ा ऑडिटर का, जिसके पास ज्यादा ऐसी एंटिटीज के ऑडिट है जिनमें पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, लाइक बैंक, इंश्योरेंस, लिस्टेड कंपनीज, समय समय पर ICI वहां पर अपना कोई एक बंदा भेजे। बंदा CI होना चाहिए क्योंकि एक CI अच्छे से ऑडिट कर पाएगा, उसी को समझ है पूरी चीजों की, और उस बंदे को बोले कि यार जाके चेक कर लो। क्या चेक कर लो? उन्होंने जो जो असाइनमेंट किए हैं सैंपल बेसिस से कुछ उठा के बस उसमें ये देख लो कि भैया उन्होंने क्या सारे के सारे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, गाइडेंस नोट्स, कोई दूसरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो उस ऑडिट पर एप्लीकेबल होती थी, जैसे RBI के कोई नॉर्म्स वगैरह, इन सब का प्रॉपर पालन किया या नहीं, और इसको आइडेंटिफाई करके अगर कोई गलतियां हैं तो देखो वन ऑफ केस है या क्वालिटी फेलियर्स हैं या कंट्रोल प्रोसीजर्स के फेलियर्स हैं, और उसके आधार पे एक रिपोर्ट बना के दे दो कि भाई इन्होंने अपना काम प्रॉपरली किया या नहीं। तो हमारा उद्देश्य क्या है पीयर रिव्यू में? एक ऑडिटर का ICI के द्वारा भेजे गए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा होना चाहिए एक रिव्यू, ना कि ऑडिट, जिससे पता पड़ना चाहिए कि क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिटेटिव सेवाएं प्रदान कर रहा है या नहीं, और उसके आधार पे एक रिपोर्ट बनना चाहिए जिसके आधार पे उसकी डेफिशिएंसीज पता पड़ सके, जिसको उसको सुधारने का मौका दिया जाए। इस बैकग्राउंड के साथ लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीयर रिव्यू। इट सेज पीयर रिव्यू मींस एन एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ, तो यहाँ पे शब्द हम ऑडिट यूज नहीं करेंगे बिकॉज पीयर रिव्यू इज नॉट ऑडिट ऑफ ऑडिटर, it is rather a review, so we use the word examination and review. You'll have to kind of remember this definition well and quote it in the exams if you get a question relating to it. It's a very MCQ prone chapter. You can really expect a lot of MCQs from peer review as well as quality review because there'll be major amendment in it.
तो इट मीन्स एन एग्जामिनेशन एंड रिव्यू. हम क्या कर रहे हैं, किसका एग्जामिनेशन और रिव्यू कर रहे हैं? तो प्राइमरली द ऑब्जेक्टिव इज ऑफ सिस्टम्स. सो ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स. किसके सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स? ऑब्वियसली ऑफ द सीए फॉर्म. क्यों कर रहे हैं? We just doing a review so that we can at least identify whether these systems and procedures have been put in place. इसका मतलब क्या हुआ? क्या systems और procedures, जो लोग internal control पढ़े हुए हैं, compliance procedure पढ़े हुए हैं, वो जानते हैं कि जब भी हम कोई कंट्रोल की बात करते हैं तो कंट्रोल में हमेशा हमें चेक क्या करना होता है, क्या कंट्रोल डिज़ाइन किए गए, इम्प्लीमेंट किए गए, और whether they are being maintained और consistently अप्लाई हो रहे हैं या नहीं. तो सबसे पहले हमें देखना है कि उनके सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स क्या इम्प्लीमेंट हुए हैं. तो हम अज्यूम कर रहे होंगे ही, तो क्या हैं और उसको प्रैक्टिस में लिया जा रहा है या नहीं. हैव बीन पुट इन प्लेस बाय हुम? बाय द पीयू, प्रैक्टिस यूनिट. ये कौन है? तो जिसका पीयर रिव्यू हो रहा है, जो सीए ऑडिटर है, जो अटेस्टेशन का काम कर रहा है, जिसका पीयर रिव्यू हो रहा है, उसको बोलते हैं पीयू, प्रैक्टिस यूनिट. पीयू, कितना सुंदर नाम है, पीयू. क्यों कर रहे हैं हम उसके सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स का ऑडिट? अभी वो छोड़ो क्यों कर रहे हैं, पहले ये देखो कि चेक क्या करना है. तो इट्स एन एग्जामिनेशन ऑफ रिव्यू ऑफ ए whether the systems and procedures have been put in place, and B whether the same have been consistently applied during this period under review. तो डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन, DIMIC पढ़ते थे अपन कई बार, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस ऑफ कंट्रोल. यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस, कंसिस्टेंसी ऑफ कंट्रोल की बात की गई. कितने समय तक आपको चेक करना है कि कंस्टेंटली कंट्रोल मेंटेन किए गए ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू. अब सवाल होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंबक पीरियड अंडर रिव्यू? व्हाट डज दिस मीन्स पीरियड अंडर रिव्यू? तो पीयर रिव्यू जब भी होता है दोस्तों तो 3 साल के लिए होता है. यूजुअली आप इस टर्म को आगे पीछे कर सकते हैं, दैट्स अनदर मैटर, बट यूजुअली पीयर रिव्यू वुड बी फॉर अ टर्म ऑफ 3 years. यानी आज पीयर रिव्यू हो रहा है तो आपके पिछले 3 साल के असाइनमेंट्स पीयर रिव्यू में कवर होंगे. तो इसको बोलते हैं टर्म अंडर पीयर रिव्यू. तो हमें देखना है कि पिछले पूरे 3 सालों के पीरियड में क्या सिस्टम्स और प्रोसीजर्स इन प्लेस है या नहीं. MCQ कैसा बन सकता है कि आपने पीयर रिव्यू किया है पिछले 3 साल का, जब आपने वेरिफिकेशन देखा तो आपने देखा कि 2 साल पहले कंट्रोल्स काफ़ी सीए फर्म के कंट्रोल्स की बात हो रही है. सीए फर्म क्या प्रॉपर सिस्टम्स और प्रोसीजर्स नहीं थे जिससे कि इंश्योर किया जा सके कि ऑडिट वाज डन एज पर द ICAI स्टैंडर्ड्स. बट अब सब कुछ सही कर दिया गया है, तो क्या हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा? तो डेफिनेशन देख के लगता है कि करना पड़ेगा, जस्ट फॉर द रीजन कि ये बोलते हैं कि क्या कंसिस्टेंटली उन्हें हमने अप्लाई किया है या नहीं किया है. और कंसिस्टेंटली कब तक देखना है? ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू. तो डेफिनेशन का 2 पार्ट मैंने आपको बताया. सबसे पहले इट इज अ रिव्यू एंड एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, याद हो गया, टू चेक वेदर दी सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स हैव बीन पुट इन प्लेस एंड वेदर दे बीन अप्लाइड कंसिस्टेंटली ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू. तो भैया हमने देख लिया लगाए सिस्टम और कंसिस्टेंटली लगाए हैं, पर हम कब मानेंगे कि ये सिस्टम्स प्रॉपरली लगाए गए? तो द थर्ड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन कुड बी टू एंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज. तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो आपने आश्वासन देने वाली सुविधाएं दी हैं, एश्योरेंस सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विस. तो पहली टर्म यहाँ पे अब जो मुझे एज सच एक दूसरी टर्म, पीयर रिव्यू पढ़ते पढ़ते एक दूसरी टर्म मुझे समझना पड़ रही है, विच इज एश्योरेंस सर्विस. तो वेदर द क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विस एज एनविसाज्ड बाय द टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स. तो इसका मतलब अब मेरे सामने एक और टर्म सामने आ रही है, विच इज टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, जिसे हम कहते हैं TPE, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स, एज एप्लीकेबल इंक्लूडिंग अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स देयर टू. हमें इंश्योर करना है बेसिकली कि हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस आए, और क्वालिटी ऑफ सर्विस एज पर TPE एंड एज पर अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आए. तो अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ बेसिकली 3 पार्ट में, डेफिनेशन को लाल, हरा, नीला. तो नीले में हम बात कर रहे हैं कि वी वांट बेसिकली व्हाट, टू एंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज आर प्रॉपर. और कब मानेंगे क्वालिटी प्रॉपर है? आप कब बोलोगे ऑडिट अच्छे से हुआ है? जब वो एज पर स्टैंडर्ड्स किया गया, और अगर कोई दूसरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है तो उसे भी फॉलो किया गया. तो अब इसमें आपको 2 चीजें समझना पड़ेगी. व्हाट डू यू मीन बाय एश्योरेंस सर्विसेज, एंड सेकंड व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स. सबसे पहले एश्योरेंस सर्विस. माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, लाइव बैच अगर अभी होती तो फिर मैं बकायदा MCQ आपके सामने यूं छेड़ता और आपसे पूछता कि भाई बताओ एश्योरेंस सर्विस क्या है.
अभी हमारी एफआर की लाइव बैच कंप्लीट हुई है, दिन हो गए हालांकि उसको, बट इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बेसिकली हैविंग लाइव इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स. एंड एफआर जैसा लेंदी सब्जेक्ट टाइमली बेसिस पे कंप्लीट हो गया, बिकॉज डेली बेसिस पे यू हैव टू सी द लेक्चर्स. And fortunately, though we provide an option that student can kind of at any point of time they can change to Google Drive option, and they can then remaining set of lectures they can start viewing through Google Drive. Despite that, initial 10-15 दिनों में जो students ने decide किया Google Drive में shift करने के अलावा, उसके अलावा we had kind of an 80% plus set of students who continued till the last lecture. Which was actually a clear indication of the benefits which the students had of a live batch. So we did those kind of a lot of things, and there's so many things which we have developed in the app and everything. And eventually what happened is we actually were able to complete one of the most I could say till date powerful, efficient, effective, comprehensive, taking you right from the base till the zenith level of concepts, not hurrying up at any particular place, kind of a batch. And we are starting another batch for audit as well, which is basically starting from this coming Monday. Any which ways, so 26th April से. So any which ways, what I was saying is कि यहाँ पे अपन कुछ MCQs लेते हैं. No problem, अभी live नहीं है तो भी मैं ले लूँगा, डिस्कस कर लेंगे अपन कुछ. बट अभी आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अश्योरेंस सर्विसेज के ऊपर ही हमें क्या करना है, चेक करना है क्वालिटी मेंटेन हुई या नहीं. तो अब अश्योरेंस सर्विस क्या होती है? लेट मी थ्रो सम क्वेश्चंस ऑन यू. मैंने एक कंपनी ऑडिट किया, अश्योरेंस सर्विस है क्या? हाँ लगता है सर. टैक्स ऑडिट मे बी, जीएसटी ऑडिट, हाँ. कोई बैंक से लोन लिया है उसने ऑडिट करवाया. स्टॉक ऑडिट बैंक ने करवाया क्योंकि सीसी लिमिट है बैंक के पास सैंक्शन. ओके. रिव्यू कराया मैंने क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स का लिमिटेड रिव्यू, क्या ये एश्योरेंस सर्विस में आएगा? इंटरनल ऑडिट कराया, कॉन्करेंट ऑडिट करता हूं मैं बैंक्स के, क्या आएगा एश्योरेंस में? इंस्टीट्यूट ने साफ साफ कहा है यहाँ पे पीयर रिव्यू स्टेटमेंट में कि एश्योरेंस सर्विस का मतलब एकदम क्लियर है. कोई भी ऐसी एंगेजमेंट जहां पर प्रैक्टिशनर यानी कि सीएफ जो प्रैक्टिस में है, ये प्रैक्टिशनर जिसका पीयर रिव्यू हो रहा है उसे पीयू कहते हैं, प्रैक्टिस यूनिट. सिर्फ वो एंगेजमेंट जिसमें आप एक कंक्लूजन, एक ओपिनियन देते हो, जिससे आप यूजर का कॉन्फिडेंस जीत रहे हैं. किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जिस पे भी आपने दिया. एंड व्हेन आई से यूजर, आई एम सेइंग एक्सटर्नल यूजर अदर देन द मैनेजमेंट, and it includes internal audit, concurrent audit, etc. यानी कि बेसिक फंडा है एश्योरेंस सर्विस का कि आप कोई भी ऐसी सेवाएं दे रहे हो जिसमें आप एक ओपिनियन, आप एक कंक्लूजन बना रहे हो, जिससे कि कोई थर्ड पार्टी अदर देन द रिस्पॉन्सिबल यानी मैनेजमेंट रिलाई करना शुरू कर दे. तो क्या इंटरनल ऑडिट एज सच एश्योरेंस सर्विस में कवर होगा? पीयर रिव्यू स्टेटमेंट में स्पेसिफिकली कहा गया है कि इंटरनल कॉन्करेंट ऑडिट भी कवर हो सकते हैं अगर इसके ऊपर कोई भी थर्ड पार्टी रिलाई कर रही है. थर्ड पार्टी क्या हो सकती है? एनी पार्टी अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी. अब यहाँ पे थर्ड पार्टी शब्द यूज नहीं किया, रिस्पॉन्सिबल पार्टी किया. जैसे कि आई एम डूइंग ऑडिट, इंटरनल ऑडिट ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ बैंक, कॉन्करेंट ऑडिट, एंड आई एम गिविंग माई रिपोर्ट टू द जोनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस, who are based on that saying कि क्या ब्रांच पे काम सही है या नहीं. यहाँ responsible party is the branch manager and the branch staff, and based on my report it is giving a level of confidence to the HO or the zonal office or the regional office. इसका मतलब responsible party के अलावा भी किसी को आश्वासन मिल रहा है, भले ही वो सेम एंटिटी के अंदर है. Here थर्ड पार्टी और एक्सटर्नल यूजर शब्द यूज नहीं किया गया है. बारीकी में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है कि ये भी अपने आप में पीयर रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एश्योरेंस सर्विस में कवर किया जाएगा. So this is also a kind of assurance service. इसका मतलब क्या हुआ? वापस से अपन डेफिनेशन पे आते हैं. यहाँ पे इंडेस एक तो बहुत जबान पे चढ़ा हुआ है, अभी एफआर की क्लास चल रही थी इसलिए क्षमा करना. अभी ऑडिट शुरू हो जाएगी तो ये चढ़ जाएगा. एनीवेज, तो ये स्टेटमेंट साफ साफ कहता है कि सिर्फ एश्योरेंस सर्विसेज के ऊपर ही पीयर रिव्यू होगा. यानी कि जब पीयर रिव्यूअर आपके आएगा ना तो वो आपकी सारी काम को चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ आपके एश्योरेंस सर्विसेज या एश्योरेंस एंगेजमेंट्स को ही चेक करेगा. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूसी का पीयर रिव्यू होता है और पीयर रिव्यू करने के लिए आईसीआई किसी रिव्यूअर को भेजता है. तो वो रिव्यूअर, पीडब्ल्यूसी ने कई सारी टैक्स कंसल्टेंसी दी होगी किसी को, हो सकता है कईयों का उन्होंने प्रोजेक्ट फाइनेंस भी करवाया हो, लोन सिंडिकेशन कराया हो, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी दी हो. ये सारे कामों का पीयर रिव्यू नहीं होने वाला है.
सिर्फ उसने जो अश्योरेंस सर्विसेज उसकी प्रदान की है, जिसमें उसने किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया, वो वाले असाइनमेंट रिव्यू और सैंपल बेसिस पे उठा के चेक करेगा और देखेगा कि क्या वो एज पर स्टैंडर्ड्स हुए या नहीं हुए। तो इसके लिए साफ साफ कह दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको पीयर रिव्यू में हमें कभी भी एग्जामिन नहीं करेंगे। दीज आर एरियाज व्हिच आर नॉट टू बी एग्जामिन्ड इन पीयर रिव्यू। क्या? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंगेजमेंट, रिप्रेजेंटेशन बिफोर वेरियस अथॉरिटीज, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना या टैक्सेशन मैटर पर एडवाइस करना, कंपाइलेशन अरेंजमेंट्स अगर आपने कुछ किए हैं तो, ड्यू डिलिजेंस स्पेसिफिकली ध्यान रखना है आपको। ड्यू डिलिजेंस एसेंशियली देखा जाए तो एक ऐसा काम है जो आप एक इन्वेस्टर हो, किसी कंपनी में पैसे लगाना चाह रहे हो, आपने वहाँ पे ड्यू डिलिजेंस करवाया जस्ट टू चेक कि भैया ये कंपनी के फाइनेंशियल्स अप्रोप्रिएट है या नहीं, उसके बेसिस पे मैं जो वैल्यूएशन उस कंपनी को दूंगा वो अप्रोप्रिएट होगा या नहीं होगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन को एक्वायर किया तो पहले एक ड्यू डिलिजेंस कराया कि यार ये लोग जो नंबर्स, ये जो सब्सक्राइबर्स, ये जो रेवेन्यूज, ये जो स्टाफ, ये जो ग्रोथ कोट कर रहे हैं, ये सही है या नहीं। तो उस एंगल से एक ड्यू डिलिजेंस रिव्यूअर जाके सारी चीज़ों को रिव्यू करके कई सारे एस्पेक्ट्स पे रिपोर्ट देगा। टेक्निकली स्पीकिंग ड्यू डिलिजेंस भी एक तरह का एश्योरेंस दे रहा है क्या, क्योंकि वो चेक कर रहा है रिस्पॉन्सिबल पार्टी इस केस में कौन है, लिंक्डइन, जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया और रिपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट को दे रहा है। तो ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड असाइनमेंट है विच इज मोर इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यूजुअली इन्वेस्टिगेशन एश्योरेंस सर्विसेज में कवर नहीं होते बिकॉज दे आर डन विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ फ्रॉड्स। दो ड्यू डिलिजेंस इज नॉट अ फ्रॉड डिटेक्टिंग एक्सरसाइज बट इट इज इन इटसेल्फ अ सेपरेट एक्सरसाइज। आई एम श्योर ड्यू डिलिजेंस आपके कोर्स में आप पढ़ भी चुके हैं। तो इसको एक्सक्लूड किया गया है, तो ड्यू डिलिजेंस रिव्यूज कवर नहीं किए जाएंगे पीयर रिव्यू के कवरेज में। सिमिलरली कभी आपको टेस्टिफाइंग एज एन एक्सपर्ट विटनेस बुलाया गया है। फॉरेंसिक ऑडिटर्स होते हैं जिनको बुलाया जाता है वही टू टेस्टिफाई एज अ विटनेस, तो वो असाइनमेंट भी कोई एश्योरेंस सर्विस नहीं है, वो कवर नहीं होंगे। सिमिलरली आपने कोई एक्सपर्ट ओपिनियन किसी मैटर पे दिया है, लाइक यू नो इंडेस के ऊपर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए तो कोई सीएन प्रैक्टिस है जो देता है उसके ऊपर, तो ये तरह के असाइनमेंट्स इसमें कवर नहीं होंगे। तो ऑल इन ऑल दीज आर सम 7 ऑड एरियाज जो स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है, बट ये इंक्लूसिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। जनरल नियम ये है कि एश्योरेंस दे रहे हो तो पीयर रिव्यू में कवर होगा, नहीं तो नहीं होगा। याद करने के लिए आप सिंपली चाहें तो व्हाट यू कैन पॉसिबली डू इज यू कैन सिंपली मेंशन दैट हियर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग टॉक अबाउट सीडी, compilation, due diligence and expert. Expert में you're talking about two things, expert giving an opinion or expert basically testifying as a witness, and here you can say RST, R for representation, T for taxation, and this is basically management consultancy services. याद रखने के लिए आप चाहो तो इम्पॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर सवाल भी आ चुका है कि किन एरियाज को पीयर रिव्यू के स्कोप से बाहर रखा जाता है। So you can find a question in study material 2021 also, and November 2020 old course में November 17 में क्वेश्चन आ चुका है, areas not to be examined in peer review। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आया, क्या कवर होगा, एश्योरेंस सर्विस कवर होगी, क्या कवर नहीं होगा, नॉन एश्योरेंस। ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट है जो कवर नहीं होता है। तो जो क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विस है कब मानेंगे वो अप्रोप्रिएट है, व्हेन इट मीट्स द टीपी एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। सो नाउ लेट अस कम टू टीपी। व्हाट डू वी मीन बाय टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। डेफिनेशन में यहाँ पे 6 चीजें कवर की गई है, जिसमें से 3 एएस रिलेटेड है और 3 दूसरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कंपनीज के अलावा यानी कि आईसीआई ने अदर देन कंपनीज इशू किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कंपनीज के लिए इशू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, और इंडेस। इसके अलावा आपके जितने भी स्टैंडर्ड्स, स्टेटमेंट, गाइडेंस नोट, रेगुलेशंस, एक्ट के प्रोविजंस, नोटिफिकेशंस, जो सब कुछ फॉलो करना है कोई भी एश्योरेंस असाइनमेंट के लिए, वो सब। तो स्टैंडर्ड में क्या आ जाएगा, एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे, एसक्यूसीज, एसएज, एसआरईज। इनफैक्ट ऐसा ही है, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट भी आ जाएगा क्योंकि इंटरनल ऑडिट भी यहाँ कवर होता है। आपके सारी गाइडलाइंस आ जाएंगी, नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, सी एक्ट के आपके एथिकल प्रोविजंस भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे बिकॉज दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एक्ट। तो दिस इज द कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल द स्टैंडर्ड्स इशूड बाय आईसीआई अलॉन्ग विद एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, स्टेटमेंट, गाइडेंस नोट, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट, गाइडलाइन, नोटिफिकेशन, प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एक्सेट्रा। प्लस जो भी आपका फ्रेमवर्क होता है विच यू कैन से एज अ प्रीफेस, तो एसए, एसआरई, एसक्यूसी, इन सब के पहले एक फ्रेमवर्क होता है जो बैकग्राउंड देता है। तो जैसे शेड्यूल 3 है तो उसका एक फ्रेमवर्क है, वैसे ही स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके फ्रेमवर्क होते हैं, वो भी
टीपीई में कवर होते हैं, और इसके अलावा जो भी रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जो एप्लीकेबल होते हैं उन स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स में, जैसे टैक्स ऑडिट के केस में 3CD रिपोर्ट हो गई, या आरबीआई के केस में एनबीएफसी की कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की ऑडिट रिपोर्ट्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो गई, या इंश्योरेंस कंपनी में आईआरडीए ने स्पेसिफिकली बोल रखा है कि ऑडिटर को मैनेजमेंट रिपोर्ट के ऊपर कमेंट करना होगा या ये चीज़ें चेक करके रिपोर्ट करना होगा। ऐसी जो भी स्पेसिफिक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब भी टीपीई का पार्ट है। इसके अलावा भी कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो ऑडिटर के लिए रेलेवेंट हो सकती है, जो उसे कोट करना पड़ सकता है, जैसे कभी कंपनीज एक्ट स्पेसिफिकली बोल देता है कि भैया नोटबंदी के दौरान कोई नोट अगर पकड़ में आए तो आप उसके बारे में रिपोर्ट करिए। ऐसी कोई भी स्पेसिफिक चीज़ें जो कही गई है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के ऊपर कहा गया है कि भैया ऑडिटर को कमेंट करना है कि वो अप्रोप्रिएटली जितनी दे सकते हैं उससे ज़्यादा तो नहीं दिए, ये कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो ये अदर देन टीपीई कोई भी दूसरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है तो वो सब के अनुसार क्या आपने काम किया है तो माना जाएगा आपने क्वालिटेटिव सर्विस दी है। ये चेक करना ही पीयर रिव्यू का उद्देश्य। हे भगवान, डेफिनेशन पढ़ने में इतना समय अप्रोच है दोस्तों, क्यों? क्योंकि पढ़ के मैं आपको एक एक करके रीड आउट करते जाऊँ, आप बोलोगे हाँ सही पढ़ रहे हैं, और अल्टीमेटली आप बोलोगे चलो पढ़ते पढ़ते सुन भी लिया, समझ भी आते गया, बट देन एट द एंड ऑफ इट दिमाग में एक रिदम, एक लय, एक थीम, एक कॉन्सेप्चुअल चेन क्रिएट जब तक नहीं होगी तब तक आपको चीज़ों को मेमोराइज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आई एम टेकिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम, दिस इज नॉट जस्ट काइंड ऑफ रिविजन लेक्चर, इट्स अ कंप्लीट डिस्कशन ऑन पीयर रिव्यू, सो आई विल बी टेकिंग दैट अमाउंट ऑफ टाइम टू काइंड ऑफ एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर होल थिंग। सो पीयर रिव्यू क्या होता है दोस्तों? तो इसके बेसिस पे आई कैन नाउ काइंड ऑफ कंक्लूड दैट द डेफिनेशन ऑफ पीयर रिव्यू इज, पीयर रिव्यू मीन्स एन एग्जामिनेशन एंड रिव्यू। किस चीज का? ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स to determine whether they've been put in place and whether they've been operating consistently during the period under review, to ensure quality of assurance services as envisaged in the technical, professional, ethical standards and any other regulatory requirements. In this, what do I mean by assurance service? Wherever other than the responsible party, I'm giving in assurance which is increasing the confidence of that party. It includes internal audit, concurrent audits as well. It does not include specifically 7 things, which could be your RST, you can say provisions with respect to tax representation services, management consultancy services, or simple representation services. And then CD could be compilation engagements, due diligence, or expert giving an opinion or testifying as a witness. TP would talk about accounting standard for other than companies, for companies, Ind AS, all your standard statements, guidance note, notifications, provisions of the act and regulations. Apart from that, framework for all your standards and any other regulatory requirement. You do your audit as per these things, we can then conclude कि yes आपने qualitative काम किया है। अब इसमें एक सवाल अगर ज़्यादा बारीकी में मैं सोचने की कोशिश करूँ, आपने बोला सर कि इसमें आईसीआई के सारे रूल्स, रेगुलेशन, एथिकल रिक्वायरमेंट सब कुछ कवर हो जाएगी, तो सी एक्ट भी कवर हो जाएगा, कोड ऑफ एथिक्स भी कवर हो जाएगा। एब्सोल्युटली कवर होगा, बिल्कुल 100% कवर होगा। इफ यू गेट अ क्वेश्चन क्या कोड ऑफ एथिक्स भी टीपी का पार्ट है, हम बोलेंगे एब्सोल्युटली। तो सवाल ये उठता है कि से आर्टिकल्स की रेगुलेशन है उसमें, क्योंकि अपन तो वैसे ही सोचते हैं। तो समझो कि एक सीए फर्म है जो अपना ऑडिट बहुत अच्छे से कर रही है, बट आर्टिकल्स को स्टाइपेंड समय पे नहीं देती है। इससे उसकी ऑडिट क्वालिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, पर आर्टिकल्स को स्टाइपेंड समय पे नहीं दिया गया। ए, इज इट समथिंग विच इज अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ योर अश्योरेंस सर्विस? नो, एटलीस्ट टिल नाउ। बी, is this something which will be covered in the scope of peer review? I mean, is this something which is a part of TP and hence is to be covered by the peer review? So, to answer your question, सबसे पहले जब मैं यहाँ पे कोई भी ICI के नोटिफिकेशन, गाइडलाइंस, एक्ट, प्रोविजंस, रेगुलेशंस की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी रेगुलेशन ऑफ ICI. I am only talking about regulations which concern the assurance engagements. That's it. क्योंकि हमें चेक क्या करना है, डेफिनेशन में लिया हुआ है क्वालिटी ऑफ अश्योरेंस सर्विस एज एनविसाज्ड इन टीपी, तो हमें सिर्फ अश्योरेंस सर्विस चेक करना है। तो आर्टिकल की रेगुलेशंस पर से टीपी के अंतर्गत भले ही कवर होती हो, हमारे लिए वो क्योंकि अश्योरेंस सर्विस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हमें उसको टीपी की डेफिनेशन में शामिल नहीं करता। यानी हमें टीपी में सिर्फ वो चीज़ों को शामिल करना है जो अश्योरेंस सर्विस से रिलेटेड है, बाकी चीज़ें
टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड फॉर एश्योरेंस सर्विसेज में शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या, पीयर रिव्यू को इसे चेक करने की जरूरत है? तो डेफिनेशन के बेसिस पे इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि आईसीआई चाहता था कि पीयर रिव्यू के साथ साथ हम कुछ दूसरे एथिक्स के कंप्लायंसेस को भी क्रॉस चेक करा लें, तो उन्होंने स्पेसिफिकली डेफिनेशन के बियॉन्ड कुछ चीजों को पीयर रिव्यू के स्कोप में शामिल कर दिया। So this brings us to our discussion on scope of peer reviews. Now you understand definition, related terms, and why we are studying scope. Scope will further enhance our coverage of peer review. सबसे पहले आपको चेक करना है प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस, टीपी। क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, इसका मतलब कि आपने जो ऑडिट रिपोर्ट इशू करी है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कोई भी एश्योरेंस सर्विस में जो आपने रिपोर्ट दी है वो ठीक है या नहीं, सिस्टम्स और प्रोसीजर्स फॉर एश्योरेंस सर्विस अप्रोप्रिएट है या नहीं, और ये कुछ स्कोप में एडिशन किए गए जो डेफिनेशन से कवर नहीं होते बट स्पेसिफिकली चेक करना है पीयर रिव्यूअर को। पहला, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टाफ along with proper infrastructure, compliance with directions relating to fees to be charged, number of audits, register to be maintained. एथिक्स में आपने पढ़ा था आप 30 से ज़्यादा कंपनी ऑडिट, 60 से ज़्यादा टैक्स ऑडिट नहीं कर सकते, ये सब तरह की चीज़ें चेक करना। फीस के तो अभी कोई मैंडेटरी रेगुलेशंस नहीं है, वो आ गए तो वो चेक करना। और लास्ट, directions or guidelines of the council relating to article and audit assistance including making their register, work diary, stipend payment and related records. तो 3 चीज़ों को स्पेसिफिकली शामिल किया गया है। आर्टिकल की ट्रेनिंग, उनकी फीस, उनके रिकॉर्ड्स आपको चेक करना होंगे, स्पेसिफिकली कवर्ड। सेकेंड, आईसीआई की कुछ रेगुलेशन ऑन मेंबर्स रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, रिलेटिंग टू कैश बुक लेजर बनाना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, कितने ऑडिट्स किए हैं, फीस चार्ज करने से रिलेटेड प्रोविजंस, और फाइनली स्टाफ की ट्रेनिंग करना, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। इन 3 चीज़ों को भी स्पेसिफिकली पीयर रिव्यूअर चेक करके अपने रिपोर्ट में कवर करेगा। तो दिस इज द स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू। आई थिंक इसके बेसिस पे अपने मोर और लेस क्या कवर हो जाते हैं, तो वी कवर द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, द स्कोप, द ऑब्जेक्टिव, and also what do we mean by assurance engagement and what is covered and what is not. अदर डेफिनेशंस देखें तो मेंबर का मतलब सीए एक्ट के अंदर 2.2 में जो मेंबर है, पीयर रिव्यू पीरियड 3 साल का होता है, अनलेस पीयर रिव्यू बोर्ड इसे चेंज करना चाहे तो कर सकती है। प्रैक्टिस यूनिट यानी वो प्रैक्टिशनर या फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दोनों हो सकती है। तो प्रैक्टिस यूनिट कैन बी अ फॉर्म और इट कैन बी अ सी इन प्रैक्टिस हु इज प्रैक्टिसिंग एज अ प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल विल बी अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस यूनिट जिसका पीयर रिव्यू हमें करवाना है। रिव्यूअर वो बंदा है जो होगा सीआई और अप्रूव्ड है और एम्पैनल्ड है। पीयर रिव्यू बोर्ड, जब भी बोर्ड शब्द यूज किया जाए तो बोर्ड मीन्स ऑलवेज पीयर रिव्यू बोर्ड इस चैप्टर में, जिसको भेजा गया है पीयर रिव्यू करने के लिए। क्वालिफाइड असिस्टेंट कौन है? बेसिकली ये इसका बंदा है, ये भी सीआई होता है जो पीयर रिव्यूअर को असिस्ट करता है। एक असिस्टेंट अलाउड है जिसके प्रोविजन हम पढ़ेंगे। देयर इज अ टेंडर मॉनिटरिंग कोड ऑफ एथिक्स के आपने अगर अमेंडमेंट वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पे हमने कवर किया है स्पेसिफिकली कि टेंडर्स में अब आप मिनिमम फीस अगर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर वो एक्सक्लूसिवली आपके लिए एरिया रिजर्व्ड है तो। पर कई बार नॉन रिफंडेबल फीस की जगह रिफंडेबल फीस लाइक अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट वगैरह होता है, वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं गवर्नमेंट टेंडर्स में। तो इसके लिए ग्रुप ही बना दिया गया है जो सिर्फ यही चेक करता है कि जो टेंडर्स हैं उनमें जिस तरह की टर्म्स दी गई हैं उसके अगेंस्ट में क्या अप्लाई करना अप्रोप्रिएट होगा या नहीं। तो वो बेसिकली उसके बेसिस पे समय समय पे गाइडेंस देते रहते हैं। यूडन आप लोगों ने सुना होगा, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, कोड ऑफ एथिक्स में इसकी भी गाइडलाइन शामिल कर दी गई है जो अब आप हर आपके ऑडिट असाइनमेंट, सर्टिफिकेशन असाइनमेंट, कोई भी रिपोर्ट अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए आपको क्रिएट करना पड़ता है। हालांकि धीरे धीरे यूडन और भी चीज़ों में जैसे प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेशन करने के लिए भी यूडन इनकॉर्पोरेट करने की बात करी जा रही है। तो यूडन अपने आप में एक हो सकता है लार्जर चीज़ हो जिसमें आज की तारीख में शायद सिर्फ अटेस्टेशन एंगेजमेंट्स कवर हो रही हैं, आने वाले समय में हो सकता है और भी चीज़ें कवर होना शुरू हो जाए। अभी सर आपने एक शब्द यूज़ किया अटेस्टेशन एंगेजमेंट्स, कम बैक, व्हाट डू यू मीन बाय दिस अटेस्टेशन एंगेजमेंट्स? ये शब्द कई बार आया। तो दोस्तों जहाँ पे भी आप किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो तो वो अटेस्टेशन एंगेजमेंट है इस स्टेटमेंट के लिए। तो इंटरनल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट की रिपोर्ट बैंक्स के केस में भी अटेस्टेशन एंगेजमेंट्स का पार्ट हो सकती है। तो ये सब पढ़ने के बाद आई थिंक आई हैव सम थिंग्स टू बी आस्क्ड टू यू is like what? So let's try some MCQs on this. चलिए क्विकली ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ।
Assurance engagement refers to क्या? Audit engagement, audit services, attestation engagements, या all of these are same terms, just interchangeably used. Assurance, peer review किसको कवर करेगा? Assurance engagement को. उसमें क्या कवर होता है? The answer is D. ICAI ने पुराने रिव्यू स्टेटमेंट में कहा था, यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया, बट इट मीन्स द सेम थिंग कि यहाँ पे हम अश्योरेंस का मतलब कोई भी ऑडिट, कोई भी रिव्यू, कोई भी अटेस्टेशन एंगेजमेंट, कोई ऑडिट सर्विस, ये सब टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज करें. तो अश्योरेंस में ये सब कवर होगा. आप ये मत समझना कि अटेस्टेशन एंगेजमेंट कुछ और होता है, ऑडिट एंगेजमेंट कुछ और होता है. मे भी हो सकता है, बट पीयर रिव्यू में हमें अश्योरेंस एंगेजमेंट टर्म यूज करना है. प्रमल, क्या मैं बोल सकता हूँ कि हर वो असाइनमेंट जिसमें यूडिन लग रहा है वो पीयर रिव्यू में कवर्ड होगा? आज की तारीख में शायद अपन ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि आज हम यूडिन उन्हीं चीज़ों पे जनरेट कर रहे हैं जहाँ पे हम सर्टिफाई या रिपोर्ट दे रहे हैं. बट ऐसा नहीं है, ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है. इसका आंसर होना चाहिए सी. सी. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इज इंटरनल ऑडिट क्या पीयर रिव्यू में कवर होंगे? द आंसर इज, मैंने दो ही दिए, यस और नो. मैं चाहता तो दो और दे सकता था. यस इन सर्टेन केसेस और नो ऑलवेज. तो मेरा आंसर होता है यस इन सर्टेन केसेस. अगर आप जिस ब्रांच का इंटरनल ऑडिट करके रिपोर्ट उसी ब्रांच को दे रहे हो और उससे कोई कॉन्फिडेंस किसी यूजर का सच बढ़ नहीं रहा है, तो फिर वो यहाँ पे शायद कवर ना हो. एंड टेकिंग अनदर MCQ, दिस बेस्ड ऑन एवरीथिंग लाइक काइंड ऑफ व्हाट वी काइंड ऑफ जस्ट डिस्कस्ड. आर्टिकल ट्रेनिंग की रेगुलेशंस क्या पार्ट ऑफ TPE स्टैंडर्ड्स है? द आंसर इज नो. पर क्या आर्टिकल ट्रेनिंग रिलेटेड प्रोविजंस को पीयर रिव्यू के स्कोप में कवर किया जाएगा? द आंसर इज यस. तो इसका मतलब क्या होगा? नो. यस. तो आंसर विल बी सी. TPE में सिर्फ अश्योरेंस सर्विस से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स ही कवर होंगे, सारे के सारे प्रोविजंस वहां पर कवर एज सच नहीं होंगे. चलिए, तो आई होप दैट गिव्स यू अ फेयर आइडिया इन टर्म्स ऑफ हाउ टू डील विद दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड. मैंने MCQs अभी पूरे थ्रू आउट में नहीं कराने, बट अभी मैंने ले लिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि विच इज द एरिया वेर यू हैव टू काइंड ऑफ फोकस अपॉन. कूल, दैट्स गोइंग ग्रेट. मूविंग ऑन. अगला सवाल, क्या हर CA फर्म जो अश्योरेंस सर्विसेज दे रही है उसका पीयर रिव्यू होगा? इम्पॉसिबल हो जाएगा. कैसे करेंगे? तो कैटेगराइज कर दिया है. यहाँ मेजर अमेंडमेंट आते हैं. सर आप इतना सब कुछ समझा रहे हो, आप ये तो बता दो, हम तो पीयर रिव्यू पहले पढ़ चुके हैं, हमें सिर्फ अमेंडमेंट कवर करना है, आप पूरा पढ़ा रहे हो. आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप पूरा एक बार देख लीजिए. आप अमेंडमेंट ढूंढने जाओगे, उसके लिए आप अमेंडमेंट वीडियो या अमेंडमेंट पार्ट देखना प्लस उसको ढूंढने का जितना समय आप स्पेंड करोगे, उससे 1.5 टाइम्स में आप पूरा डिस्कस कर लोगे, देख लोगे, और आपका ज्यादा अच्छे से कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाएगा. फिर भी आप चाहते हो समय बचाना, तो जो जो चीजें अमेंडमेंट हुई हैं वो सब मैंने रेड कलर से लिखी हैं ड्रोन चार्ट में, तो आप सिर्फ उसके ऊपर फोकस कर सकते हो. कुछ जगह पे मैंने अपडेट 2021 लिख दिया, क्योंकि मे बी वो अमेंडमेंट है या मे बी ICAI के मॉड्यूल में नहीं था और अब उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है. तो उन चीजों को बस आप फोकस कर लीजिएगा अगर आपको सिर्फ अमेंडमेंट देखना है तो. क्योंकि मैं हर प्रैक्टिस यूनिट का तो पीयर रिव्यू कर नहीं सकता, तो मैंने लेवल बना दिए. पहले 3 लेवल होते थे, अब 2 कर दिए. लेवल 1 वो प्रैक्टिस यूनिट्स हैं जो लार्ज एंटिटीज का ऑडिट करते हैं, जिसे आप कहने को पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी कह सकते हो, जो कि टर्म कहीं डिफाइंड नहीं है पीयर रिव्यू स्टेटमेंट में, बट आपको न्यूज में अक्सर देखने को मिलेगी. रिसेंट न्यूज कभी आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा डेलॉयट हैज स्टॉप्ड गिविंग नॉन ऑडिट सर्विसेज टू इट्स ऑडिट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी क्लाइंट्स. यानी जिन एंटिटीज में पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, लाइक लिस्टेड कंपनी, बैंक, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट कंपनीज, अगर हम उनका ऑडिट कर रहे हैं तो हमने उनको नॉन ऑडिट सर्विसेज पूरी तरह से देना बंद कर दिया. ऐसे भी कंपनीज एक्ट का सेक्शन 144 रिस्ट्रिक्ट करता है, बट नेवरदलेस दैट्स अनदर थिंग. तो अगर आप ऐसी एंटिटीज का ऑडिट कर रहे हैं जहां पे पब्लिक का इंटरेस्ट एक इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे केस में आपके ऊपर भी दारोमदार आपका भी बढ़ जाता है कि आपके यहाँ पे ऑडिट की क्वालिटी बहुत अच्छी रहे, बिकॉज यू काइंड ऑफ reporting on entities where public interest is involved. These kind of entities are termed as level 1 entities और level 1 practice unit, जिनका हर 3 साल में एक बार peer review होगा. और ये peer review 3 साल तक valid होगा. इसका मतलब अब ऐसा हो गया है कि जैसे इनके 3 साल खत्म होंगे, इनका peer review का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा.
और आईसीआई की कुछ रेगुलेशंस है, जैसे लिस्टेड कंपनी का ऑडिट अब आप तभी कर सकते हो जब आपका पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है, यानी आपका पीयर रिव्यू हो चुका है और आपका पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इफेक्टिव है। तो अगर मैं लेवल 1 एंटिटी हूँ तो मेरा पीयर रिव्यू हुआ जिसमें पिछले 3 साल के मेरे असाइनमेंट्स का रिव्यू हुआ और मुझे एक सर्टिफिकेट दे दिया गया अगर सब कुछ ठीक था तो 3 साल के लिए। सर्टिफिकेट मिलने से 3 साल तक मेरा पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट वैलिड है। इनफैक्ट पीयर रिव्यू होने से 3 साल तक उसमें डेट लिखी रहती है वैलिडिटी की। उसके बाद मैं लिस्टेड कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी जिम्मेदारी है कि सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म होने से महीने भर पहले मैं इंस्टीट्यूट को बता दूं भैया खत्म हो रहा है, आप मेरा वापस से पीयर रिव्यू करवा। तो आपके ऊपर ही ओनर्स है, अगर आप चाहते हो उस तरह के ऑडिट आगे करना तो आपको खुद को बोल के करवाना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट करवाएगा ही, बट मिस हो जाए तो आप खुद करवाइए, नहीं तो नुकसान आपका ही। हालांकि कोविड के चलते इंस्टीट्यूट ने कई जगह एक्सटेंशन दिया है बहुत सारी एंटिटीज को 2019 से लेके अभी 2021 तक। इनफैक्ट एंटिटी स्पेसिफिक नहीं, एक जनरल एग्जाम्पशन दे दिया गया है कि भैया कोविड के चलते हम सबके पीयर रिव्यू जिनके एक्सपायर हो रहे हैं उनको एक्सटेंड कर रहे हैं 1 साल के लिए ऐसा। एनी विच वेज लेवल 1 एंटिटी को पीयर रिव्यू एवरी 3 years कराना है और पीयर रिव्यू जब भी होता है तो पिछले 3 साल के पीरियड का होता है। लेवल 2 एंटिटीज यानी ऑल दी अदर एंटिटीज को 4 साल में एक बार पीयर रिव्यू कराना है, यानी ये 4 साल में एक बार पीयर रिव्यू कराएंगे, फिर इनकी पीयर रिव्यू की साइकिल वापस 4 साल बाद आएगी। जब भी पीयर रिव्यू होगा तो इट विल बी फॉर द लास्ट 3 years ऑफ असाइनमेंट्स। तो 1 साल के असाइनमेंट बीच में हो सकता है कि इनके चेक होने से छूट जाए क्योंकि ये लेवल 2 है, कंपेरेटिवली लेस क्रिटिकल सीए फॉर्म्स और सीए फॉर्म्स जिनके क्लाइंट में पब्लिक का इंटरेस्ट थोड़ा कम है। तो कम मानते हैं क्लाइंट्स जिसका आप ऑडिट कर रहे हो वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज होंगी। तो आप यूँ समझ लीजिए कि मैंने आपको आसानी हो समझने में इसके लिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटी एज अ होल, कंपनी एज अ होल, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट यानी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पूरे का ऑडिट आपके पास है तो आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर कहलाते हो। पर उसकी सिर्फ 3-4 ब्रांच का ऑडिट आपके पास है तो आप ब्रांच ऑडिटर कहलाते हो। किसी भी बैंक इंक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक, कोई भी सेंट्रल या स्टेट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कोऑपरेटिव सोसाइटी, बोर्ड हालांकि उसमें क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर सकती है नेटवर्थ, नेट कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के आधार पे कि इसके ऊपर वाली ही लेवल 1 में काउंट होंगी, और सारी इंश्योरेंस कंपनी। तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या कह सकते हो, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और स्पेसिफाइड PSUs, इनफैक्ट ऑल योर PSUs and cooperative society which are specified in a criteria। इनकी ब्रांच का नहीं, सेंट्रल ऑडिट अगर आप कर रहे हो तो आप लेवल 1 एंटिटी हो, बट ऊपर जो चीज दी गई है इनमें आप एंटिटी का या उसकी किसी ब्रांच का स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो, यानी सेंट्रल ऑडिटर कंपनी के नहीं है, आप ब्रांच के भी। देन इन दैट पर्टिकुलर केस तो अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में आप लेवल 1 हो जाएंगे। किसका? म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कोई भी लिस्टेड कंपनी जो इंडिया या आउटसाइड इंडिया लिस्टेड है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन। कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, भले ही वो कंपनी नहीं है, मे बी ट्रस्ट या बॉडी कॉर्पोरेट, कोई दूसरे फॉर्म में रजिस्टर्ड, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी की डेफिनेशन नहीं है। कोई भी ऐसी एंटिटी जिसमें बैंक, पब्लिक डिपॉजिट्स या पब्लिक से 50 करोड़ से ज्यादा, मोर देन इक्वल टू नहीं है, मोर देन है यहाँ पे, फंड्स रेस किए या आपने सरकार से इतने की डोनेशन रेस की है या आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है। ये कब चेक करना है? ये सारी लिमिट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिव्यू, यानी पिछले 3 साल में किसी भी दिन ये लिमिट क्रॉस हो गई तो आप लेवल 1 में आ जाओगे। बोर्ड NBFCs डिफाइन करेंगी कि इस तरह की NBFCs में भी वो बोल सकती है कि जिनकी इतनी टर्नओवर या इतनी कैपिटल या इतनी नेटवर्थ है, पीयर रिव्यू बोर्ड डिफाइन करेगी। उसका ऑडिट किया है तो लेवल 1, जो उस डिफाइंड कैटेगरी ऑफ NBFC में नहीं है उसका ऑडिट किया तो लेवल 2। और ये जितनी एंटिटी अपन ने पढ़ी है अबव और बिलो, बैंक, इंश्योरेंस, स्पेसिफाइड कंपनीज या लिस्टेड कंपनीज, PSUs, इन सब की क्या क्या पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर्स, फेलो सब्सिडरी कवर नहीं है यहाँ पे। इन सब का अगर आपने इनमें से किसी का भी आपने ऑडिट किया तो आप लेवल 1 हो, नहीं तो आप लेवल 2। लेवल 2 में आखिरी पॉइंट पढ़ लो, एनी अदर प्रैक्टिस यूनिट जो एश्योरेंस सर्विस दे रहा है, जिसका काम कोई भी एश्योरेंस सर्विस देना है, वो सब लेवल 2। तो इसमें क्या आ जाएगा? तो सेंट्रल ऑडिट जिसका था उन्हीं का अगर आपने यहाँ पे कॉन्करेंट इंटरनल सिस्टम टैक्स ऑडिट या ब्रांच ऑफिस का किया, कंपनी एज होल का नहीं, किसका? PSU, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उस केस में आप सेकंड केस में आ जाओगे।
सिमिलरली अगर आप एनबीएफसी जो बोर्ड ने स्पेसिफाई की है लेवल 1 वाली, उसके नीचे वाली का किया है तो 2 में आ जाओगे। नेटवर्थ का क्राइटेरिया है 5 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर का 50 करोड़ से ज़्यादा है, ये दोनों और क्राइटेरिया। सिमिलरली ऐसा भी बोल सकते हैं कि इससे ज़्यादा यूडिन जिस सीए फॉर्म ने जनरेट किया है उसका पीयर रिव्यू लेवल 2 में कवर करेंगे। स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ एंटिटीज जिन्होंने 25 करोड़ से ज़्यादा पब्लिक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा रेज किया है पर 50 करोड़ से कम, एग्जैक्ट 50 करोड़ तो यहाँ वहाँ दोनों जगह ही काउंट नहीं होता है, आज की तारीख में लिमिट ऐसी डिफाइन की गई। और इसके अलावा बाकी सारे प्रैक्टिस यूनिट, तो इन सब का मतलब क्या है, जो स्पेसिफाइड लिमिट है वो तो पक्का कवर होंगी, उसके अलावा भी हम कवर कर सकते हैं। रियल लाइफ में भारत में आज बोला तो ऐसा गया है कि आईसीआई हर प्रैक्टिसिंग यूनिट का 4 साल में एक बार अब पीयर रिव्यू कराएगा ही कराएगा, बट रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। सारी लिमिट आपको ड्यूरिंग द पीयर रिव्यू पीरियड देखनी है। इन सब लिमिट में कभी भी पीयर रिव्यू बोर्ड चाहे तो वो उससे कम फ्रीक्वेंसी में भी आपका पीयर रिव्यू करवा सकता है। कोई प्रैक्टिस यूनिट जल्दी पीयर रिव्यू कराना चाहे बेहतरमैन के लिए तो वो भी कर सकता है, कोई स्यू मोटो भी अप्लाई कर सकता है, उसका अभी तक नहीं हुआ है कि भैया मेरा करवा दो। तो बोर्ड और प्रैक्टिस यूनिट में रिक्वेस्ट फॉर शॉर्टर पीयर रिव्यू इंटरवल्स। बोर्ड विद अप्रूवल ऑफ काउंसिल कैन मॉडिफाई अबव द क्राइटेरिया काउंसिल, यानी आईसीआई की काउंसिल, क्योंकि ये सब इंटरनल बॉडी है हमारी। सिमिलरली प्रैक्टिस यूनिट जो सिलेक्ट नहीं हुआ है वो स्यू मोटो अप्लाई कर सकता है और 30 दिन के अंदर अंदर आईसीआई उसका पीयर रिव्यू इनिशिएट करवा देगा। और इसके अलावा बोर्ड के पास कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आती है कि यार कुछ लफड़ा हो रहा है तो वो बोर्ड स्पेशल रिव्यू भी उस केस में ऑर्डर कर सकती है। दिस इज बेसिकली व्हाट द पीयर रिव्यू इज। और पीयर रिव्यू बोर्ड क्या होती है, तो बोर्ड बेसिकली काउंसिल की होती है जिसमें 12 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, जिसमें से आधे काउंसिल से होना जरूरी है, और 2/3 बाय रोटेशन 3 साल या काउंसिल के जब तक वो मेंबर है, अगर काउंसिल मेंबर के कारण उनकी मेंबरशिप आई है, जो भी पहले उसमें वो रिटायर होंगे। रोटेशन कैसे होगा, तो चेयरमैन वाइस चेयरमैन हर साल रोटेट हो सकते हैं, बाकी 2/3 3-3 साल में रोटेट होंगे। कोई कैजुअल वैकेंसी आएगी तो बोर्ड उसे फिल करेगा, एज सच कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है तो अगली मीटिंग तक आपको फिल करना। रिस्ट्रिक्शन, कोई भी डिसिप्लिनरी कमिटी या डिसिप्लिनरी बोर्ड का मेंबर पीयर रिव्यू बोर्ड का पार्ट नहीं बनेगा। ये दोनों अलग अलग चीजें, इट्स लाइक बोर्ड ऑफ स्टडीज और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। डिसिप्लिनरी कमिटी हमारा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है और ये पीयर रिव्यू बोर्ड बोर्ड ऑफ स्टडीज जैसा है, ये दोनों में एक आदमी नहीं हो सकता है। तो इसके लिए कहा गया है कि जो लोग डिसिप्लिनरी एक्शंस ले रहे हैं वो पीयर रिव्यू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका काम क्या है, कंप्लेन आई है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना, ना कि उसको बोलना सुधर जा। ये लोग सुधारने के लिए पीयर रिव्यू वाले। चलिए, रिपोर्टिंग बोर्ड किसको करेगा, तो वो काउंसिल को करेगा। एंड कोरम क्या होती है और मीटिंग क्या करना है इनको, तो कोरम में सिंपल रूल है कि कम से कम 3 मेंबर होना चाहिए, जिसमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन में से एक मौजूद होना चाहिए, या 1/3, दोनों में जो भी ज़्यादा है उतने आपकी मिनिमम कोरम है। कोरम नहीं होगी तो आधी घंटे के लिए आप एडजर्न कर दो, और एडजर्न टाइम और प्लेस पे चेयरमैन वाइस चेयरमैन में से किसी एक का होना ज़रूरी है। वो लोग क्या कर सकते हैं, मीटिंग आगे कंक्लूड कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि 3 महीने में कम से कम एक बार पीयर रिव्यू बोर्ड को मिलना ज़रूरी है। ये आपके पीयर रिव्यू बोर्ड के प्रोविजंस हैं। और आपको ध्यान रखना है कि पीयर रिव्यू बोर्ड, प्रैक्टिस यूनिट, क्वालिफाइड असिस्टेंट, जो रिव्यूअर है वो, बोर्ड, क्वालिफाइड असिस्टेंट, प्रैक्टिस यूनिट, सबके ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट। तो सबको इंश्योर करना है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी का डिक्लेरेशन साइन करे, और ध्यान रखना है डिक्लेरेशन एंगेजमेंट शुरू होने से पहले साइन करना है, एंगेजमेंट खत्म होने पे नहीं, पहले साइन करना है। तो अपन बाकी सारे प्रोविजंस पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे आप कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट को इजीली समझ पाओगे। ठीक है, तो ये अपने प्रोविजन हो गए, जिससे आपने थोड़ा सा स्कोप समझ लिया, ऑब्जेक्टिव समझ लिया, क्या कवर होगा क्या नहीं होगा, क्या फ्रीक्वेंसी में किन यूनिट्स का रिव्यू किया जाएगा, और पीयर रिव्यू बोर्ड क्या होती है। अब इसके बाद अपन आते हैं पीयर रिव्यू बोर्ड अब कैसे पीयर रिव्यूअर्स को एम्पैनल करेगी, फिर प्रैक्टिस यूनिट जिन्हें आइडेंटिफाई किया है कि इनका पीयर रिव्यू होना चाहिए उनके पास भेजेगी, और किस तरह से वहां पे पीयर रिव्यू का पूरा प्रोसेस रन किया जाएगा। चलिए, तो वी विल कम टू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट now and we will cover up these aspects which you can say कि अब अपन peer review के further procedures में जा रहे हैं, process में जा रहे हैं। चलिए, तो now let us come to the next point which is eligibility of being a reviewer। तो अगर आपको peer review करना है किसी एंटिटी का, करता कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन करवाता है, आईसीआई का पीयर रिव्यू बोर्ड। तो ये पीयर रिव्यू बोर्ड एम्पैनल करता है कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, मेंबर्स को, और फिर उन्हें भेजता है रिव्यू करने के लिए। तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई वाज नॉट अ पीयर रिव्यूअर, बट आई वाज एक्चुअली इन द पैनल ऑफ ट्रेनिंग पीयर रिव्यूअर्स। So I used to take certain sessions on auditing standards basically to train people who were desirous of becoming peer reviewers. भारत में peer reviewer की बड़ी कमी है आईसीआई के पास, because of the reason that
it's a kind of job which not many people want to kind of do, just because of the reason that A, you do end up making some money, but B, at the same end you do end up making some enemies. बिकॉज आपका काम क्या होगा इसे कि भैया पे जाके सीए के यहाँ जाना और सीए के यहाँ जाके उसका काम चेक करना और उसको बोलना कि भाई तू काम अच्छे से कर रहा है या नहीं। क्या होता है, एक सीए दूसरे सीए को कहता है कि भाई तेरा काम सही नहीं है, तो आई मीन यू नो वो भाईचारा बचता नहीं है। इस कारण से ये जो रिवीजन हुआ, इस रिवीजन में पीयर रिव्यूअर की एलिजिबिलिटी को भी थोड़ा रिलैक्स किया गया। पहले होता था कि 15 साल का एक्सपीरियंस आपका है उसके बाद ही आप पीयर रिव्यूअर बन सकते हो, क्योंकि हमारे पास कमी थी रिव्यूअर्स की। तो अब आईसीआई ने क्या कहा है, तो उन्हें कहा है कि वी विल क्रिएट अ टीम ऑफ पीयर रिव्यूअर्स which will A be members definitely and B these guys should be members in practice and they should have at least 10 years of experience। पहले 15 साल होता था, तो इन्होंने बोल दिया कि कम से कम आपका कितना 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप लेवल 1 एंटिटीज का पीयर रिव्यू करने के लिए एलिजिबल बनना चाहते हैं। तो 7 साल का अगर आप लेवल 2 एंटिटीज का ही पीयर रिव्यू करने के लिए एलिजिबल बनते हो। यानी कि एक सीए जो लेट्स से फॉर एग्जांपल 2014 में सीए बनाए और प्रैक्टिस में चले गया, 2021 में ही कैन बिकम अ पीयर रिव्यूअर, बट ही विल ओनली बी एलिजिबल टू डू पीयर रिव्यू ऑफ सीए फर्म्स व्हिच फॉल इनटू लेवल 2 कैटेगरी। आई होप दैट्स क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप पीयर रिव्यू करने जा रहे हो एक ऐसी एंटिटी का जो अपने आप में बड़ी लार्ज एंटिटी है, आई मीन प्रैक्टिस यूनिट लाइक अ बिग फोर और एनी ऑफ दीज गुड फर्म्स जिनके पास लिस्टेड कंपनी के ऑडिट या बैंक के सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट से, ऐसी हजारों फर्म्स हैं भारत में। तो आप सोचिए 7 साल का एक लड़का, आई मीन 7 साल के एक्सपीरियंस का एक लड़का अगर उन फर्म्स में सोचो पीडब्ल्यूसी में पीयर रिव्यू करने कौन जा रहा है, लड़का ये अभी 7 साल पहले सीए बना था। It looks to be a little strange because he may not be really having that kind of an experience। वो वहां जाके क्या समझाएगा पीडब्ल्यूसी को कि पीडब्ल्यूसी ये देख सत्यम ऐसे करता तो नहीं होता। इनफैक्ट वो तो खुद सीख के आएगा, बोले बढ़िया यार पीयर रिव्यू करने जाते उस बहाने अपन भी सीख लेंगे अपनी फर्म में क्या करना, वहां का कॉपी यहाँ कर लेंगे। इसके लिए कहा गया है कि भैया जो लार्जर सीए फर्म्स हैं उनको पीयर रिव्यू करने वाला रिव्यूअर कम से कम 10 साल का अनुभव रखने वाला होना चाहिए। आई मीन सर 10 इज ऑल्सो नॉट अ वेरी बिग डील। हमारे भैया के भैया है वो 2010 में सीए बने, तो क्या 2021 में वो अप्लाई कर सकते हैं और पीयर रिव्यूअर बन सकते हैं और बिग फोर जैसी फर्म्स का पीयर रिव्यू कर सकते हैं, जबकि उन्होंने खुद की अपनी सीए फर्म में कभी कोई पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी टाइप की एंटिटी इसके पर से ऑडिट किया ही नहीं। तो इसके लिए कंडीशन और डाली है कि अगर आपको लेवल 1 एंटिटी का पीयर रिव्यूअर बनना है तो इसके लिए आपको ये एक और क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए कि आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस का, जिसमें से कम 7 साल या तो आपका खुद का फर्म आपने पीयर रिव्यू ऑडिट करवाया है या फिर आपके पास कम से कम लेवल 1 एंटिटीज के ऑडिट करने का 7 साल का अनुभव है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मैं सार्थक जैन अगर एक सीएन प्रैक्टिस हूं और मैं पीयर रिव्यूअर बनना चाहता हूं लेवल 1 प्रैक्टिस यूनिट्स का, तो सबसे पहले मुझे प्रैक्टिस करते करते 10 साल हो जाना चाहिए। दूसरा, इन 10 में से 7 साल तक मेरे पास या तो ऑडिट रहे हों लिस्टेड एंटिटीज, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के, या फिर मैंने अपनी सीए फर्म जिसका जो मेरी फर्म है उस फर्म का मैंने क्या किया है, कम से कम 7 साल तक पीयर रिव्यू करवाया है और मेरी फर्म 7 साल तक लेवल 1 एंटिटी रही थी। तो उस केस में मुझे एलिजिबिलिटी होगी कि मैं लेवल 1 कैटेगरी के प्रैक्टिस यूनिट का रिव्यू कर पाऊं, विच इज वेरी वेरी करेक्ट। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे लोग जॉब से प्रैक्टिस में आ जाते हैं। कई समय तक नौकरी करने के बाद आदमी को लगता है कि पैसा जाए तेल लेने, हमें तो पावर चाहिए, पावर, और हमें पावर नहीं मिल रहा है जॉब में, वो मिलेगा हमें प्रैक्टिस में, और किसी पे नहीं तो 10 अबला आर्टिकल्स पर। तो हम चाहते हैं कि हम प्रैक्टिस में।
तो मैं 20 साल से जॉब कर रहा हूँ, आई एम डूइंग जॉब में भी इन सी ए फॉर्म और इन इंडस्ट्री, और मेरा भयंकर टाइप का एक्सपीरियंस है, बट आई विल नॉट बी एलिजिबल टू बिकम अ पीयर रिव्यूअर इफ आई वांट टू, बिकॉज आई हैव जीरो प्रैक्टिस एक्सपीरियंस. ICI says now even people who have come in from industry to practice are eligible to become peer reviewer, but there आप यूँ समझ लो कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो ए दे शुड हैव अ लिटिल मोर एक्सपीरियंस, तो आप 1.5 गुना कर दीजिए. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लेवल 1 एंटिटीज का पीयर रिव्यूअर बनना चाहते हैं तो आपका एक्सपीरियंस 10 की जगह 15 साल का होना चाहिए इंडस्ट्री में. लेवल 2 का 7 की जगह 10.5 को 10 कर दो, राउंड में ले लो, 10 साल होना चाहिए. पर ये तो आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है एज ए जॉब. अब आप प्रैक्टिस में हो तो आपका मिनिमम प्रैक्टिस एक्सपीरियंस तो होना चाहिए. तो इसके अलावा ये जो लिमिट अपन ने लिए इसका 1/3 कर लीजिए, इतना आपका एडिशनल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए. इसका मतलब कि अगर आप लेवल 1 एंटिटीज का पीयर रिव्यूअर बनना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 15 साल का सर्विस एक्सपीरियंस प्लस इसका 1/3 यानी 5 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए. लेवल 2 के केस में 10 साल, इसका 1/3 3.33 राउंड करके 3 कर दीजिए. 3 इयर्स का आपका प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी टोटल कम से कम आपको सीए बने 13 साल या 20 साल रिस्पेक्टिवली हो चुके, तो आपको एलिजिबिलिटी आ जाएगी रिव्यूअर एम्पैनल होने की. इसके बाद ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस है तो अपन आईसीआई के पास गए और आईसीआई को अपन ने बोला आईसीआई पहचाना, उन्होंने बोला क्या पहचाना, हमने बोला देखो भाई हमारा प्रोफाइल देखो, हमारे पास वो एक्सपीरियंस है जिससे हम पीयर रिव्यूअर बन सकते हैं. आए हम आपके पास पीयर रिव्यूअर का सर्टिफिकेट लेने, दे दीजिए हमें सर्टिफिकेट, और याद करिएगा इस ना चीज़ को, जब भी आपको ज़रूरत हो अगली बार किसी रिव्यूअर की. आईसीए ने बोला भाई ऐसे अपन हर भलते चलते सीए को रिव्यूअर नहीं बना देंगे. अगर आपको रिव्यूअर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक सम ट्रेनिंग एंड यू विल आल्सो हैव टू पास सम टेस्ट. ये जो ट्रेनिंग थी यही मैं कराता था. तो यू शुड हैव रिक्विजिट ट्रेनिंग एंड यू शुड हैव क्लियर्ड द रिक्विजिट टेस्ट फॉर पीयर रिव्यू प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड. और सर मतलब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे बुजुर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ट्रेनिंग देते थे, इतने बुजुर्ग भी नहीं रहते थे बस. तो बट अब ठीक है ऐसे बुजुर्ग बोल सकते हो. मेरा कोई देख लो 18 साल हो गए अपने प्रैक्टिस करते करते, अभी तो अपन प्रैक्टिस में नहीं है, बट सीए बने हुए तो मैं बोल ही सकता हूँ. माय गॉड सर 18 साल देख लगता नहीं ना, त्वचा देख कर उम्र का पता ही नहीं पड़ता. हाँ सर हमें लगा 30-35 पार हो गए होंगे आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. अरे तो तुम मेरे नॉलेज से बोल रहे हो, चल झूठे. चलिए एनीवेज, तो मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि आपको एक ट्रेनिंग लेना पड़ेगी जो मैं या हमारे जैसे कोई लोग आपको देंगे, और आपको एक टेस्ट पास करना पड़ेगा. और उसके बाद में ये टेस्ट कौन लेगा, पीयर रिव्यू बोर्ड. उसके बाद में आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है बोर्ड को फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट, और कॉन्फिडेंशियलिटी का जो मैंने अभी बताया था एक डिक्लेरेशन साइन करना होगा. फिर आपको एम्पैनल कर दिया जाएगा एज ए रिव्यूअर. फिर जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपका नाम प्रपोज किया जाएगा. वो प्रोसेस मैं अब आपको बताता हूँ. ये कुछ किलर्स हैं. किलर क्या होता है, अभी तुमने लॉकडाउन में पोकर 3 पत्ते खेली होगी, अगर ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है, इसमें से अगर कुछ भी अट्रैक्ट हो गया आपको तो देन यू विल नॉट बी एलिजिबल टू बिकम अ रिव्यूअर. कौन, अगर आपके अगेंस्ट में कभी भी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट किया गया या ऑलरेडी कोई प्रोसीडिंग अंडर डिटर्मिनेशन है, तो पेंडिंग इंक्वायरी है, या कोई भी कोर्ट से आपको मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, एक ऐसा ऑफेंस जो पनिशेबल है, पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट की हुई है या नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, ऐसा कोई ऑफेंस. इससे क्या होगा, एक चीज समझना दोस्तों, आप सोचो कि फॉर एग्जाम्पल मैं रिव्यू करने गया किसी सीए फर्म का, और सीए फर्म फिर मेरी मजे लेगी, वो अपने आर्टिकल को ही बोलेगा देखो देखो रिव्यूअर करने कौन आए हैं, इनके अगेंस्ट तो इंस्टीट्यूट कुछ 10 साल पहले डिसिप्लिनरी एक्शन ले चुका है. बहुत बढ़िया, सही बात है, इंस्टीट्यूट ने इनको चुना, शायद चोरी जानता है चोरी कैसे होती है. हमने बोला भाई दैट्स व्हाई पास डू नॉट खरोच इट, खुरे दो मत उसको, क्योंकि वापस से अगर वो वाला 80 बाहर आ गया तो खबरदार हो जाओगे तुम. बोला हाँ हाँ समझते. आर्टिकल भी आके पूछ रहे हो उस प्रैक्टिस यूनिट का जहां मैं रिव्यू करने गया हूँ, बोले सर थोड़ा सा बताओ ना आपने क्या किया था, आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था, हमको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिला हमारी फर्म में उसका. हम बोला चिंता मत कर बेटा, अभी तेरा रिव्यू करेंगे ना तेरे पापा का,
सीए फर्म का तेरा फिर सब एक्सपोजर मिल जाएगा तेरे को डिसिप्लिनरी एक्शन। बोला नहीं सर, पीयर रिव्यू से डिसिप्लिनरी एक्शन का होता है, मौका मिलता है सुधरने का। एनी विच वेज, तो इसके लिए बोला गया है कि कभी भी आपके अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी है, प्रोसीडिंग पास्ट में इनिशिएट हुई जिसमें आपको गिल्टी पाया गया या अभी अंडर एडजुडिकेशन पेंडिंग है, या कोई मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस के लिए आपको दोषी ठहराया गया है जिसमें पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट की, भले ही आपको हुई है या नहीं, बट इट इज पनिशेबल विद इट। जैसे होता है ना कई बार पनिशेबल अप टू 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, पर आपको 0 ईयर्स की हुई यानी नहीं, तो भी वो ऑफेंस अगर आपको उस पर दोषी ठहराया गया है तो आप डिस्क्वालीफाई जाओ। ये कब देखना है? पिछले 3 साल, 5 साल, 10 साल, कभी भी। क्वालिटी रिव्यू में जो अपन एलिजिबिलिटी देखेंगे ना, तो वहाँ 3 साल के लिए देखते हैं। वो कैसा है? वो सरकार का काम है। सरकार में ऐसे ही होता है, नेतागिरी वगैरह में ऐसे नहीं होता कि भैया कभी भी जेल की सजा हुई तो नेता नहीं बन सकता। ऐसा होएगा तो आधे नहीं बन पाएंगे, इनफैक्ट थोड़े ही बचेंगे। वहाँ टाइम लिमिट है। पिछले 3 साल का तुम्हारा इतिहास खराब है तो ठीक है, अदरवाइज मान लेंगे बंदा सही हो गया, अलाउ करो इसको मौका दो। लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया 3 साल का। एनी इसके अलावा यू शुड नॉट हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको कभी भी ऐसे प्रैक्टिस यूनिट का रिव्यू नहीं करना है जिसके साथ आपका कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या है? इट इज योर स्यू मोटो डिटर्मिनेशन दैट इफ यू थिंक दैट प्रैक्टिस यूनिट एंड आपके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है, क्या हो सकता है, मे बी रिलेटिव्स की ही, जो प्रैक्टिस यूनिट मतलब जिसका पीयर रिव्यू हो रहा है, मैं कौन हूँ पीयर रिव्यूअर, तो अपनी रिलेटेड पार्टी है, या मैं उनका पहले स्टैट्यूटरी ऑडिट उसकी फर्म का मैं ही करता था, सीए फर्म के भी ऑडिट्स होते हैं ना, तो उसका मैं करता था, या मैं कोई उनके असाइनमेंट्स आउटसोर्स करके हैंडल करता था। तो इसके लिए 2 कंडीशन और है। कोई भी ऐसा ऑब्लिगेशन या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रैक्टिस यूनिट के बीच में या उनके लोग या उनके पार्टनर्स के साथ नहीं होना चाहिए। ये आपको स्यू मोटो डिटरमाइन करना। इसकी कोई लिमिट डिफाइंड नहीं है कि आपने क्या किया तो माना जाएगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और 2 years बिफोर ऐड किया गया, पहले आफ्टर होता था, और आफ्टर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट प्रैक्टिस यूनिट से कोई प्रोफेशनल असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास पीडब्ल्यूसी का पीयर रिव्यू आया, तो दैट्स द प्रैक्टिस यूनिट, आई एम द पीयर रिव्यूअर। मैं वहाँ गया, मैंने गलतियाँ ढूंढी, मैंने बोला कि ये रिपोर्ट में जाएगी, उन्होंने बोला यार अच्छा आप तो इंदौर से हो ना, इंदौर में हमारा ऑफिस नहीं है और खूब सारा काम हमारे पास इंदौर का आउटसोर्स करना था, कोई अच्छा प्रैक्टिसिंग सीए फर्म हो तो बताना। हमने बोला कैसी बात कर रहे हो, ये जो हमने क्वालिफिकेशंस देखे हैं ये तो कोई मामूली से है, हमें लग ही नहीं रहा है ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप बोलो तो बताइए कैसे करना है, इसको रिपोर्ट में लिखना है या नहीं। पीडब्ल्यूसी ने बताया, बोले ये देखो ये सारे काम है, बस ये आपको ही करना है, हमें आपकी जैसा ही कोऑपरेटिव बंदा चाहिए था। इसके लिए बोला है रिव्यू होने से 2 साल बाद तक आप काम नहीं ले सकते प्रैक्टिस यूनिट से। अब 2 साल पहले का भी बोल दिया था कि पुराना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कहीं राइज ना हो। क्यों? क्योंकि एज सच यहाँ पे 3 साल होना चाहिए था, क्योंकि पीयर रिव्यू पीरियड 3 साल का होता है, तो मैं भी लास्ट 3 years का हमें चेक करना है, बट दे हैव केप्ट द लिमिट ऑफ 2 years। चलिए, इंस्टीट्यूट ने एक जनरल ज्ञान दिया है यहाँ पे कि पीयर रिव्यू ऑफ ऑडिटर प्लीज समझिए, CS प्लीज समझिए कि आप इसको बहुत पॉजिटिवली लीजिए। हम इससे आपके नेचर ऑफ वर्क को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप समझिए कि पीयर रिव्यू की जरूरत है। दिस इज मोर ऑफ अ जस्टिफिकेशन फॉर पीयर रिव्यू ऑफ ऑडिटर्स। ये नया ऐड हुआ है अभी स्टडी मटेरियल में। क्यों पीयर रिव्यू जरूरी है प्रैक्टिसिंग यूनिट्स के लिए? तो पहले तो आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, दूसरा एनवायरनमेंट बड़ा डायनामिक है, चेंज होते रहता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी टेक्निक, आपकी कॉम्पिटेंस को कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट किया जाए और इम्प्रूवमेंट के स्कोप है तो बताया जाए। प्लस परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन, इट इज़ व्हाट, क्योंकि लॉ बहुत इवॉल्व हो रहे हैं, सोसाइटी की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप काम अच्छे से करें, क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रॉपर आए सीए फर्म्स की। फॉर दैट रीज़न इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट you get reviewed yourself or you are actually under some review so that we can ensure your quality of services. You should also consider it the other way कि यार मैं peer review करा लूँगा तो अच्छा है, कल दिन अगर मेरे ऊपर कोई उंगली उठी तो मैं बोल सकता हूँ भैया मेरी फर्म ICAI ने peer review भी करी थी। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो। It's a first line of defense in case if there is any disciplinary action or any inquiry by regulatory body engaged started against you. And then in some cases it is actually mandatory. In fact ICAI ने अब peer review सारी firms के लिए mandatory कर दिया और यहाँ पे ICAI अपनी कॉलर ऊंची कर रहा है कि हालांकि ऐसा बहुत सारी कंट्रीज में नहीं है, पर ICAI ने ऐसा किया है कि सारी CA firms को peer review करेगा, क्योंकि लेवल 2 में सारी एंटिटीज कवर हो जाती है। रियल लाइफ में क्या सारी CA firms होती हैं? आज तक तो नहीं हुई हैं, but then let's see how things move on in future. चलें,
ऑब्लिगेशन क्या है पीयर रिव्यूअर की? तो रिव्यूअर की ऑब्लिगेशन बेसिकली क्या है कि उसको समय पे रिव्यू करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है, और इसके लिए वो कोई भी डॉक्यूमेंट कॉपी नहीं कर सकता। यानी कि पीयर रिव्यूअर जाके सब चीज़ें चेक कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, बट ही कैन नॉट टेक कॉपी ऑफ एनी पार्ट ऑफ वर्किंग पेपर फाइल्स ऑफ द प्रैक्टिस यूनिट। तो मैं पीडब्ल्यूसी का पीयर रिव्यू कर रहा हूँ, तो उन्होंने जिस भी एंटिटी के ऑडिट्स किए हैं उस पर्टिकुलर एंटिटी के जो उनके वर्किंग पेपर फाइल्स हैं उसमें से कोई डॉक्यूमेंट मैं कॉपी करके अपनी फाइल में नहीं लगा सकता, क्योंकि वो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास आ गई तो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ तक लीक हो जाएगी। तो इसके लिए कहा गया है कि यू कैन नॉट जस्ट टेक एनी एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट क्लाइंट फाइल्स और रिकॉर्ड्स एग्जामिन्ड बाय हिम एज अ पार्ट ऑफ हिज वर्किंग पेपर। यू कैन एक्सेस इट बट यू कैन नॉट टेक अ कॉपी ऑफ इट, फोटो कॉपीज नहीं करा सकते। प्रैक्टिस यूनिट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सिंपल कि वो सारे एक्सप्लेनेशन दे, सारे रिकॉर्ड्स दिखाए, सपोर्ट प्रोवाइड करे पीयर रिव्यूअर को जो भी उसको रिव्यू करने के लिए मदद चाहिए, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे। तो allow access to all records documents, give explanations to all matter, give all assistance required, and जब भी उसको कोई इन्फॉर्मेशन देना है तो वह इंश्योर करे कि एक्यूरेट और ट्रूथफुल इन्फॉर्मेशन दे। यहाँ पे एक लेजिबल फॉर्म भी दिया हुआ है कि ऐसा नहीं कि भैया पीयर रिव्यू अगर किया है तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई पीयर रिव्यू हमारी फर्म महाराष्ट्र में है और जय मराठा, हम सब मराठी में लिखते हैं, और रिव्यूअर जो आया वो साउथ इंडिया है, उसको पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, लिखा के हमने बोला भाई समझना है तो पहले मराठी समझ के आना, नहीं आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज में अवेलेबल कराना पड़ेगा, और वो एक्यूरेट कराना प्रैक्टिस यूनिट की जिम्मेदारी है। तो ये कुछ ऑब्लिगेशन है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, नथिंग मच हियर, ठीक है। So these are basically your points with respect to who will be the reviewer, the obligations of the reviewer and the practice unit. अब एक हीरे को आप ले जा सकते हो अपने साथ। ये हीरा कौन है? तो क्वालिफाइड असिस्टेंट। तो पीयर रिव्यूअर कैन बेसिकली टेक, पाँव तो मेरे दिख नहीं रहे पर मैं भी ऐसे ही खड़े हो गया, सिर्फ एक क्वालिफाइड असिस्टेंट आप लेके जा सकते हो, दैट्स अबाउट इट। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए बंदा, इसके अगेंस्ट में भी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन कभी नहीं होना चाहिए, ना अभी कोई इंक्वायरी इसके अगेंस्ट चल रही होना चाहिए, इसका भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और ये भाई आपके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। जुड़ा हुआ इन द सेंस कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज, अग्रीमेंट इसको भी साइन करना पड़ेगा, वो भी कब? एंगेजमेंट के समय। तो एक बंदा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी साइन करेगा, और चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। He should be from the firm of reviewer as a partner, or he should be a paid employee as per the record of ICAI। यानी पहले कंडीशन होती थी कि कम से कम 1 साल से वो आपके साथ जुड़ा हुआ है एज अ फुल टाइम पेड एम्प्लॉय या फिर पार्टनर। अब सिंपल ऐसा कर दिया है कि वो आपके रिकॉर्ड्स में इनफैक्ट वो बंदा या तो पार्टनर है या फिर आपके यहाँ पे फुल टाइम पेड एम्प्लॉय है, और ICAI को इन्फॉर्म्ड है कि भैया ये हमारे यहाँ काम करता है। नॉर्मली ICAI को एनुअल पर्टिकुलर्स ऑफ फॉर्म्स में हम इन्फॉर्म करते हैं हमारे कौन कौन पार्टनर है और कितने पेड CA एम्प्लॉइज हमारे यहाँ हैं, उनके नाम देते हैं, तो वहाँ पे दिए हुआ होना चाहिए। उसी बंदे को आप ले जा सकते हो, आप ऐसे भाड़े का नहीं ला सकते कोई CA, हम भाड़े मतलब बाहर का कोई CA लेके नहीं आ सकते। बोर्ड को भी बताना पड़ेगा कि ये क्वालिफाइड असिस्टेंट हम ले रहे हैं, और ध्यान रखना कि ये बंदा प्रैक्टिस यूनिट या बोर्ड से कोई इंटरफेस नहीं करेगा। यानी पीयर रिव्यू बोर्ड को सारे कम्युनिकेशन रिव्यूअर को डायरेक्ट करना है, प्रैक्टिस यूनिट से सारा कम्युनिकेशन डायरेक्ट पीयर रिव्यूअर का करना है, ये सिर्फ साइथ में रहेगा। इसका मतलब क्वालिफाइड असिस्टेंट बेसिकली कौन होएगा? तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने क्वालिफाइड असिस्टेंट किसी बंदी को बनाया हमारे साथ, वो गई है पीयर रिव्यू करने के लिए, तो ये ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस यूनिट से बात हम ही करेंगे, वो नहीं करेगी। प्रैक्टिस यूनिट की बहुत इच्छा रही है कि भाई आप उसको दे, हम बोलेंगे सारी नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने मना किया, डायरेक्ट इंटरफेस हमारे ही रहेगा, वो बात सिर्फ हमसे करेगी और किसी से नहीं करेगी, ठीक है। इज दिस फॉर देयर सेफ्टी? अब सेफ्टी वाली बात नहीं है, आपको रिव्यूअर अपॉइंट किया है, ये सिर्फ आपकी मदद के लिए है, आपको उससे काम सिर्फ अपनी मदद करवानी है, आपको रिव्यू उससे नहीं करवाना है, क्योंकि ट्रेनिंग आपने ली है, टेस्ट आपने पास किया। तो एक चीज समझ लो भैया कि कभी जस्ट इन केस कभी हाथ वाथ तोड़ी हमारे एग्जाम से पहले, तो हम राइटर की सुविधा मांग सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपन राइटर को ही बोल सकते हैं कि यार तू ही सोच लेना, तू ही लिख देना हमारे हिसाब से, तू ही पेपर दे देना, ये वाली बात है। तो ये असिस्टेंट सिर्फ हमारा एक राइटर है, ये सिर्फ हमारी मदद कर रहा है, इसका खुद का कोई डायरेक्ट इंटरफेस नहीं होगा। कूल। और अब आ जाते हैं पीयर रिव्यू प्रोसेस पे। इस पे 3 सितारे लगा दीजिएगा आप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर कई सारे MCQs भी आपको मिल सकते हैं, और प्रोसेस वाइज भी ये समझना इंपॉर्टेंट है। 4 पार्ट में प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम प्रैक्टिस यूनिट और पीयर रिव्यूअर को आइडेंटिफाई करते हैं। ये पूरे प्रोसेस में जब भी कोई टाइम लिमिट लगती है तो 7 दिन वाली लगती है। एक बार प्रैक्टिस यूनिट तय हो गया कि भैया इसका पीयर रिव्यू होना है और रिव्यूअर तय हो गया कि ये रिव्यू करेगा, फिर उसके बाद में
डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान होता है, जिसे प्लानिंग स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे एक फोर्टनाइट जहाँ भी समय है वहाँ 15 डेज का समय। फिर उसके बाद रिव्यू शुरू हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। पूरा रिव्यू आपका डेट ऑफ इंटीमेशन, यानी कि जिस दिन पीयर रिव्यू और सिलेक्ट करके प्रैक्टिस यूनिट को दे दिया गया था कि भैया ये फाइनली आपका वो करेगा। इनफैक्ट प्रैक्टिस यूनिट का जिस दिन क्या हुआ था, आइडेंटिफिकेशन हुआ था कि आपका पीयर रिव्यू होना, उससे 90 दिन के अंदर अंदर पूरा पीयर रिव्यू कंप्लीट करना होता है टोटल, जिसपे आपकी रिपोर्टिंग शिपोर्टिंग सब हो जाना चाहिए। तो जो डी पार्ट है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग। तो ये एग्जीक्यूशन है और वो रिपोर्टिंग। सबसे पहले मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। होता ये कि हम प्रैक्टिस यूनिट आइडेंटिफाई करते हैं जिसका इस साल पीयर रिव्यू होना है, और बोर्ड उसको एक लेटर भेजती है कि बधाई हो बधाई। हालांकि ये खुशी की बात नहीं है, तो दुख की बात है। हम बोलते हैं कि खुश तो हम बहुत है बता के, और दुखी तुम्हें बहुत होगा ये जान के कि इस साल तुम्हें पीयर रिव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया। हम तुम्हें ये 3 पीयर रिव्यूअर के ऑप्शन दे रहे हैं, तुम इनमें से चुनाव कर लो कि तुम किससे अपना रिव्यू कराना चाहते हो। ये 3 रिव्यूअर कौन है जो आईसीआई के पास एज अ पीयर रिव्यूअर रजिस्टर्ड है और एलिजिबल है आपका रिव्यू करने के लिए। आपको चेक करना है इन तीनों में से, और जो आपको पसंद आए आपको उसको सिलेक्ट कर लेना, और आपको बोलना है ये है वो हमारा पीयर रिव्यूअर। आप कैसे सिलेक्ट करोगे भाई? आप बैकग्राउंड देख लीजिए उस रिव्यूअर का, जो लगे ज्यादा कोऑपरेटिव है सिलेक्ट कर लो। 3 में से एक करना ही। तो सबसे पहले पीयर रिव्यू बोर्ड ने पीयू को बोला, पीयू you've been selected for peer review. These are the 3 options. Select one of them in 7 days. 7 दिन में वो जवाब देगा कि भैया हमने सिलेक्ट कर लिया है शांति देवी को, ये हमारा पीयर रिव्यू करेंगे। पीयर रिव्यूअर के नाम ऐसे होंगे तो थोड़े बुजुर्ग टाइप के। तो शांति देवी को हमने सिलेक्ट किया। तब आईसीआई शांति देवी को इंटीमेशन देगा और कहेगा, शांति देवी आपको पीयर रिव्यू करना है इस पीडब्ल्यूसी सीए फॉर्म का, जो पीयू है प्रैक्टिस यूनिट। और फिर शांति देवी क्या करेगी? एक्सेप्टेंस देगी 7 दिन के अंदर कि ठीक है मुझे एक्सेप्टेबल है। कब वो एक्सेप्टेंस नहीं देगी? कोई जेन्युइन रीजन है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या कोई कारण है तो। और जैसे ही बोर्ड को एक्सेप्टेंस मिल गई रिव्यूअर से, बोर्ड फिर इंटीमेट करेगा पीयू को, पीडब्ल्यूसी को, और बोलेगा पीडब्ल्यूसी प्रैक्टिस यूनिट जिसका रिव्यू हो रहा है, ये इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और ये एक किट हम आपको भेज रहे हैं जिसमें कुछ क्वेश्चनर और कुछ फॉर्म्स है फिल करने के। इन सबको फिल करके आप पहुंचा दो किसके पास? शांति देवी के पास। कौन है शांति देवी? रिव्यूअर। ताकि वो इन डिटेल्स के आधार पे एक सैंपल सिलेक्शन कर सके कि आपकी कौन सी अश्योरेंस असाइनमेंट्स हैं जो वो रिव्यू करेंगे। तो शांति देवी जब पीडब्ल्यूसी के ऑफिस में जाएंगे तो वहां पर वो पहले से उन्हें बता देगी कि आपके सारे क्लाइंट्स में से हमने ये कुछ 2, 4, 5, 10, 15 क्लाइंट सिलेक्ट किए, जिनके इस साल की वर्किंग पेपर फाइल्स हम देख के असेस करेंगे कि आपने काम ढंग से किया या नहीं किया। साथ ही साथ में हम आपके क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स, प्रोसीजर्स और दूसरी जो हमारी स्कोप रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लाइक डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्स ऑफ नंबर ऑफ ऑडिट्स और आर्टिकल के ट्रेनिंग के रजिस्टर्स, जो दूसरी चीज़ हमें चेक करना है वो आके हम चेक करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलता है। तो पहले मैं आपको स्टेप ए की बात कर देता हूँ। पीयू को नोटिफिकेशन देंगे कौन? बोर्ड। इसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर वो रिव्यूअर डिसाइड कर लेगा। 3 जो रिव्यूअर दिए जाएंगे उसमें से ये 3 रिव्यूअर हम रेकमेंड करेंगे और इनमें से एक आप 7 दिन में सिलेक्ट करोगे और रिव्यूअर को हम उसकी सिलेक्शन 7 दिन में बताएंगे। सॉरी, हम कितने दिन में बताएंगे, बोर्ड पे कोई टाइम लिमिट नहीं, हम बताएंगे और वो 7 दिन में हाँ बोलेगा। एक बार रिव्यूअर हाँ बोलते हैं फिर प्लानिंग स्टेज में आ जाते हैं। प्लानिंग स्टेज में क्या आता है? पीयू को बोलते हैं कि भैया आपको इन्फॉर्मेशन रिव्यूअर को 15 दिन में देनी है। अब यहाँ 15 दिन का टाइम हो गया और एक किट जो मैंने बोली ना, वो किट भर के देना होती है। तो पूरी किट में फॉर्म्स होंगे, वो फिल करके पीयू क्वेश्चनर क्या करेगा, किसको देगा? तो क्वेश्चनर आई है बोर्ड के द्वारा, पर इसको सेंड करना है हमको किसको? वी हैव टू सेंड इट टू द पीयर रिव्यूअर। इसमें प्राइमरली क्या होता है, आपको सारी अश्योरेंस सर्विस क्लाइंट के नाम, क्या सेवाएं आपने दी है उनका, ईयर ऑडिट किया है, इंटरनल ऑडिट किया है, कॉन्करेंट ऑडिट किया है, लिमिटेड रिव्यू किया है, क्या किया है और कितनी फीस चार्ज की है। फीस भी बताना पड़ती है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी का अग्रीमेंट साइन करा दे।
प्लस आपके यहाँ पे क्या पॉलिसीज और प्रोसीजर्स है जो आप फॉलो करते हो रिलेटिंग टू स्टाफ सुपरविजन, इंडिपेंडेंस, सेकेंड पर्सन रिव्यू, एंगेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू सुना होगा आपने SQC1 या SA 220 में, उसकी आपको डिटेल देना है। और क्या आपके कोई फर्म या पार्टनर या कोई असिस्टेंट के अगेंस्ट में, किसके असिस्टेंट यानी प्रैक्टिस यूनिट के कोई एम्प्लॉय के अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहे हैं तो बता दीजिए, तो किस मुद्दे पे चल रहे हैं, तो शायद पीयर रिव्यूअर वो मैटर सिलेक्शन सैंपल में नहीं लेगा। उसके बाद में पीयर रिव्यू बोर्ड अगर चाहे तो वो क्या कर सकती है, जो यूडेन डायरेक्टरेट है उससे भी जो प्रैक्टिस यूनिट ने यूडेन्स जनरेट किए वो कॉल करके पीयर रिव्यूअर को दिलवा सकती है, ताकि पीयर रिव्यूअर क्रॉस कर ले कि भैया क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है और यूडेन इतने जनरेट किए, मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और जो यूडेन की इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे भी जैसे ऑडिट करते हैं तो सेल्स का फिगर जाता है, प्रॉफिट जाता है, तो वहाँ से एटलीस्ट क्या हो जाएगा कि वो भी एक सैम्पल सिलेक्शन का बेसिस हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस यूनिट से क्वेश्चन है, और बोर्ड से, यूडेन डायरेक्टरेट से, उस CA फर्म से रिलेटेड मिली हुई इन्फॉर्मेशन, ये दो इन्फॉर्मेशन जाएगी रिव्यूअर के पास। अब रिव्यूअर को क्या करना है, इसके बेसिस पे एक सैंपल सेलेक्ट करना है जो उसे पहले एडवांस में ही सिलेक्ट कर लेना था। तो 15 दिन के अंदर अंदर जब उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से, पीयर रिव्यू बोर्ड और प्रैक्टिस यूनिट से मिल जाती है, उसको सिलेक्ट करना है। वो चाहे तो इस दौरान एडिशनल क्लैरिफिकेशन प्रैक्टिस यूनिट से मांग सकता है, और उसके बाद सैंपल सिलेक्शन का इंटीमेशन 15 दिन में देके एक ऑन साइट रिव्यू प्लान करना है वहाँ जाके काम करने का, जिसके लिए कम से कम उसे 15 दिन का नोटिस देना है। ये ध्यान रखते हुए कि 90 दिन में पूरा रिव्यू कंप्लीट हो जाना चाहिए। 90 दिन काउंट कब से होते हैं, जिस दिन रिव्यूअर को इंटीमेशन जाता है, सॉरी प्रैक्टिस यूनिट को नोटिफिकेशन इंटीमेशन जाता है कि आपका पीयर रिव्यू होना है। नोटिफिकेशन टू PU ऑफ हिज पीयर रिव्यू टू बी डन। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको टाइमलाइंस ध्यान रखना है। अब एग्जीक्यूशन कैसे होगा, तो अब रिव्यूअर यानी कि शांति देवी ऑन साइट विजिट करेंगी। ध्यान रखना, ऑन साइट में आप HO पे या किसी भी ब्रांच पे जा सकते हो, पर 7 दिन से 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन, इससे ज़्यादा आपका ऑन साइट रिव्यू नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा दिन आप वहाँ रुक नहीं सकते हो। अब इसी बात है, ये वर्किंग डेज है, तो इट शुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दिस। 7 दिन से कम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 7, कुछ केस में 15 तक, अगर बहुत बड़ी फर्म है तो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये दोनों ही मैक्सिमम लिमिट है, ऐसा नहीं है कि स्मॉल प्रैक्टिस यूनिट का 7 है और लार्ज प्रैक्टिस यूनिट का 15। एक रेंज दे रखी कि भैया ध्यान रखो 7 दिन नॉर्मल है, 15 मैक्सिमम से मैक्सिमम हो गया ऐसा। जब आप जाएंगे तो आपको प्रोसीजर्स 2 लगाना होते हैं, एक होते हैं कंप्लायंस प्रोसीजर्स और एक होते हैं आपके सब्सटेंसिव या रिव्यूइंग चेकिंग प्रोसीजर्स। एक में आप कंट्रोल्स टेस्ट करोगे किसके, प्रैक्टिस यूनिट के, कि उनके यहाँ पे क्या प्रॉपर कंट्रोल्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्सेप्टिंग द ऑडिट असाइनमेंट, की कोई भी असाइनमेंट उनको मिलता है तो इंडिपेंडेंस, उनके मैनेजमेंट इंटीग्रिटी चेक, ऐसे 220 कहता है ना, कोई भी आपको ऑडिट मिले तो लपक नहीं लेना, तो आप उसकी इंडिपेंडेंस चेक करते हो, आपके पास टाइम और रिसोर्स है या नहीं है, और मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी है या नहीं है, ये सब देख के ही आप एक्सेप्ट करते हो। पास्ट एक्सपीरियंस कोई है क्लाइंट के साथ, तो साथ ही साथ में आपको ध्यान रखना है कि आप इंडिपेंडेंटली ऑडिट कर पाओगे, या इंडिपेंडेंस का कॉन्फ्लिक्ट है तो आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करो। तो SQC1 ऐसे 220 में इस तरह की बात की जाती थी। फिर उसके बाद आपके यहाँ पे क्या होना चाहिए, CA फर्म को एक QCPP बनाना चाहिए, जिसमें वो इंश्योर करेगा कि भैया हमारी जो स्टाफ है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, ज़रूरत पड़ने पे आउटसाइड कंसल्टेशन लिया जा रहा है, साथ ही साथ में डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू होना चाहिए हमारे प्रॉपर स्टाफ का, प्लस एक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो कंट्रोल चेक करते हैं वो इन मैटर्स की करते हैं। इसको आप IMOSO ऐसे याद रख सकते हो, I for independence, MOSO बेसिकली इज मेंटेनेंस ऑफ स्किल्स एंड स्टैंडर्ड्स, आउटसाइड कंसल्टेशन कहीं लेने की ज़रूरत है, स्टाफ रिक्रूटमेंट और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीज़ें आपको असेस करना पड़ेगी। स्टाफ की आपको बेसिकली क्या चेक करना है, तो एक तो सबसे पहले आपको स्किल्स देखना है प्रॉपर है या नहीं है, ज़रूरत पड़ने पे कंसल्टेशन बाहर से लेना है, ये देखना है, डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू प्रॉपर हो रहा है या नहीं, डेवलपमेंट सुपरविजन रिव्यू है, एंड देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड ऑल्सो चेक द ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ये चीज़ों का आप कंट्रोल टेस्ट करोगे, ये याद रखने वाली चीज़ है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है,
आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जब प्रैक्टिस यूनिट के सैम्पल सिलेक्शन कर रहे हो तो सैम्पल सिलेक्शन कैसे करना है। तो ऑब्वियसली बात है, सैम्पल सिलेक्शन कैसे होगा, जो लार्ज क्लाइंट्स है वो ज़्यादा सिलेक्ट होंगे, पर आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म रखना है, अलग अलग टाइप के आपकी जो असाइनमेंट्स है वो कवर करने। तो आपको कुछ गाइडेंस दी हुई है कि सैम्पल सिलेक्शन जो होगा वो कैसे होगा। विल डिपेंड ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। वन, सबसे पहले आपने जो पीडब्ल्यूसी अगर प्रैक्टिस यूनिट है और शांति देवी अगर पीयर रिव्यूअर है, तो शांति देवी पीडब्ल्यूसी के कितने फाइल्स, कितने क्लाइंट्स की फाइल्स मंगा के उसको रिव्यू करेगी, ये किस पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले कौन से क्लाइंट की फाइल्स देखना है हमें, वो डिपेंड करेगा कि क्लाइंट पे हमने किस तरह की सर्विसेज दी है, साइज कितनी बड़ी है क्लाइंट की, और फीस क्या चार्ज करी है। क्लाइंट किसका, पीडब्ल्यूसी यानी प्रैक्टिस यूनिट। देन वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल आपको किस तरह का नज़र आ रहा है। थोड़ा बहुत आपके पास क्या होता है, जो शुरुआत में हमारे पास वो क्वेश्चनर फिल होके आती है, उसमें एक डॉक्यूमेंटेड क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर आता है, उससे भी समझ में आता है। फिर प्रैक्टिस यूनिट की मेथोडोलॉजी क्या है, कितनी लोकेशंस है प्रैक्टिस यूनिट की, इससे आपकी सैम्पल साइज डिसाइड होगी। ये कुछ नए पॉइंट्स ऐड हुए हैं। साइज और नेचर ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज कितनी है, कितने पार्टनर्स और मेंबर्स इन्वॉल्व है एंगेजमेंट में। तो ऐसी एंगेजमेंट जो बड़ी होंगी उसमें नॉर्मली 2 एंगेजमेंट पार्टनर भी हो सकते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा फोकस करने वाली होगी। फीस क्या है जो आपने चार्ज करी है, टोटल फीस आप कितनी कमाते हो, यानी पीडब्ल्यूसी की टोटल फीस के प्रपोर्शन में कौन से क्लाइंट का क्या परसेंटेज है, जीएसटी के प्रपोर्शन में भी आप देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि जो भी सैम्पल साइज आपने शुरू में सिलेक्ट किया वो फिक्स हो गई है, बाद में चेंज करना है तो आप कर सकते हो, पर वो पीयर रिव्यू की बोर्ड की कंसल्टेशन के साथ। ये करके फिर आप रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स करोगे। रिकॉर्ड्स का रिव्यू भी कंप्लायंस और सब्सटेंसिव अप्रोच होगा। तो पहले आपने कंप्लायंस रिव्यू जो किया वो किसका किया, बेसिकली सिस्टम्स, कंट्रोल्स, ओवरऑल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स का। अब आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड्स का रिव्यू कर रहे हो, जिसमें पहले आप रिकॉर्ड्स में कंप्लायंस चेक करोगे। कंप्लायंस चेक में आप क्या चेक करेंगे कि टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए क्या कंट्रोल्स हैं जो बना रखे हैं किसने, प्रैक्टिस यूनिट ने। थोड़ा याद करने के प्रोविजन, लाइक अश्योरेंस सर्विस के रिकॉर्ड्स, रिव्यू, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सब्सटेंसिव चेक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन, कंक्लूजन रिपोर्ट, ये सब क्या है, प्रैक्टिस यूनिट कैसे अपने अश्योरेंस असाइनमेंट में ये प्रोसीजर्स लगाता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूसी का एक क्लाइंट है, ठीक है, लेट्स से पीडब्ल्यूसी का क्लाइंट है एक सीके बिरला ग्रुप है। तो सीके बिरला हमने सैंपल में लिया था, तो हम क्या करेंगे देखेंगे। तो ये सीके बिरला का इन्होंने ऑडिट किया, तो सबसे पहले इन्होंने रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करके रखे, क्या रिकॉर्ड प्रॉपर कंट्रोल में रहते, कोई चेंजेस तो नहीं होते, वर्किंग पेपर फाइल्स में होते तो उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है या नहीं। सेकेंड, इंटरनल कंट्रोल्स ये लोग चेक करते हैं या नहीं, तो सीके बिरला ग्रुप के इंटरनल कंट्रोल्स चेक करे। थर्ड, सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स कितने लगाना चाहिए थे उतने लगाए या नहीं, यानी ऐसे 315 330 लगा के पीडब्ल्यूसी ने अपने क्लाइंट के ऑडिट किया या नहीं। पहले हम वो कंप्लायंस रिव्यूज करते हैं। फिर ऑब्वियसली क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन किसका, सीके बिरला ग्रुप जो क्या है क्लाइंट है किसका, पीडब्ल्यूसी का। कौन है पीडब्ल्यूसी, प्रैक्टिस यूनिट, जिसका शांति देवी रिव्यू कर रही। तो क्या सीके बिरला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन प्रॉपर है, और जो रिपोर्ट हमने बनाई है क्या वो एज पर एसेज और फॉर्मेट जो होना चाहिए वैसी है, हमारी फाइंडिंग्स के अनुसार हमारे कंक्लूजन है या नहीं। तो ऐसे 220 में इस तरह की बातें भी होती है। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि प्रैक्टिस यूनिट अपने सारे ऑडिट में क्या ये सारे कंट्रोल्स लगाता है या ये स्टेप्स लगाता है या नहीं। और फिर उसके बाद अपन इंडिविजुअल वर्किंग पेपर फाइल्स को पलटा पलटा के देखेंगे कि वहाँ पे टीपी फॉलो हुए हैं नहीं, क्या ये इसका कंप्लायंस हुआ है तो कैसे हुआ है, उसकी चेकलिस्ट हुई होगी वो चेक कर लेंगे। सारे एसेज लगे या नहीं, जैसे एंगेजमेंट लेटर बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू कैसे हुआ है, एक्सपर्ट की कोई मदद ली थी तो क्या डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये सब हम वहाँ पे वर्किंग पेपर फाइल से असेस करेंगे। तो ये समझ लो कि ये शांति देवी का सब्सटेंशियल प्रोसीजर है रिकॉर्ड्स को रिव्यू करना। और शांति देवी ने ये चेक किया कि पीडब्ल्यूसी अपने क्लाइंट के ऑडिट में क्या सारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, क्या सिस्टम है उसका रिकॉर्ड कीपिंग का, क्या सिस्टम है उसका इंश्योर करने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरऑल ठीक है, ये सब वो कंप्लायंस प्रोसीजर है शांति देवी के। इस तरह से हम रिकॉर्ड्स को रिव्यू करेंगे। ये करने के बाद फाइनली लास्ट स्टेज आ जाएगा रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में सिंपली कहा गया है कि पहले आप एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का ड्राफ्ट बनाओगे और वो डिस्कस करोगे किसके साथ, प्रैक्टिस यूनिट पीडब्ल्यूसी के साथ। और उसमें आप उनके एक्सप्लेनेशन लोगे, उनके एक्सप्लेनेशन लेके
अगर आप सेटिस्फाइड और क्लीन रिपोर्ट बनती है तो आप फाइनली क्लीन रिपोर्ट उसे और एक कॉपी बोर्ड को दे दोगे और उसके बेसिस पे एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पर अगर उनके रिस्पॉन्सेज से आप सेटिस्फाइड नहीं हो या आपको लगता है किसी कारण से रिपोर्ट क्वालिफाई करने की जरूरत है तो आप क्वालिफाइड रिपोर्ट दोगे। किसको दोगे? वो बोर्ड को। तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हर केस में जाएगी प्रैक्टिस यूनिट के पास, एक्सप्लेनेशन उससे लिए जाएंगे, क्लीन हुई तो नो प्रॉब्लम, दोनों को रिपोर्ट दे देंगे, नहीं हुई तो फिर हम क्वालिफाइड रिपोर्ट सिर्फ किसको देंगे? बोर्ड को। फिर बोर्ड आपसे हो सकता है कोई एक्सप्लेनेशन मांगे, प्रैक्टिस यूनिट से मांगे और बोलेगा कि भैया एक फॉलो ऑन ऑडिट होगा जो 6 महीने से 12 महीने, एक्चुअली 1 साल के बाद होता है, जिसको रिड्यूस करके 6 महीने तक किया जा सकता है। कम से कम 6 महीने का समय तो देंगे ही देंगे, बाय डिफॉल्ट 1 साल का समय देते हैं। तब तक आप अपने सिस्टम से उतार लो, फिर एक फॉलो ऑन रिव्यू होगा। अगर वहां पे भी गलतियां पाई गई तो फिर डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट हो सकते हैं, अदरवाइज आपको फिर बाद में पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये प्रोसेस होता है। सवाल ये होता है कि जो पीयर रिव्यूअर की रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट कैसी बनती होगी सर? जैसे हमें ऑडिट रिपोर्ट का तो फॉर्मेट ऐसे 700 में देखा है, यहाँ पे कैसा है? तो यहाँ पे भी एक पीयर रिव्यू मैनुअल होता है जिसमें फॉर्मेट दिया जाता है। पर ब्रॉडली यहाँ पे कहा गया है कि सबसे पहले आपको अपनी रिपोर्ट में एक तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉर एश्योरेंस सर्विस प्रैक्टिस यूनिट पे क्या है, जिससे कि वो इंश्योर करता है टेक्निकल एथिकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं, वो बताना है। मतलब जब पीयर रिव्यू स्टार्ट हुआ था तो हमने उससे एक क्वेश्चन है और लिस्ट ऑफ उसके पॉलिसीज प्रोसीजर्स का डॉक्यूमेंट मंगाया था। हमें ब्रीफ में स्टेट करना है कि उनके सिस्टम्स हैं। उसके बाद में जो आपने आई मोसो चेक किया था उसके ऊपर आपको रिपोर्ट करनी है कि ये सब फॉलो हो रहा है या नहीं। एंड देन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो ऑन साइट रिव्यू के बाद है, ये ध्यान रखना ये आपको पीयू से डिस्क्यूरियस करना ही करना होती है हर केस में। इसके रिस्पॉन्स 15 दिन में वो आपको देगा और उसको राइटिंग में दिए जाएंगे और अगर सेटिस्फाइड है तो क्लीन रिपोर्ट दे दो, नहीं है तो मॉडिफाइड रिपोर्ट चली जाएगी। दोनों केस में आपको पीयू को भी एक कॉपी सबमिट करना ही करना पड़ेगी, विच इज फॉर श्योर। तो 1 कॉपी शुड गो टू द प्रैक्टिस यूनिट। किसकी? जो भी आपकी फाइनल रिपोर्ट है उसकी। एंड देन फिर उसके बाद फॉलो ऑन ऑडिट होगा। व्हाट इज फॉलो ऑन ऑडिट? लेट्स सी दैट। तो बस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हमारा डिस्कशन। ये मॉडिफाइड रिपोर्ट के केस में फॉलो ऑन रिव्यू होगा 1 साल के बाद, चाहे तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं पर 6 महीने से कम नहीं। एंड देन ये सिमिलर जैसा पहले हुआ है सेम वैसे के वैसे उसी लॉजिक से होगा। ये कोई दूसरा बंदा भी आके कर सकता है, ठीक है। पीयर रिव्यूअर के वर्किंग पेपर्स, ओके। तो रिव्यूअर को डॉक्यूमेंट करना है उसने जो भी काम किया और ही शुड सबमिट अ कॉपी टू द बोर्ड इफ डिमांडेड। जरूरी नहीं है देना ही है और बोर्ड मैक्सिमम 12 महीने में मांग सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं। सब कुछ अगर ठीक हो गया इनिशियल और रिपोर्ट में, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो फाइनल हो गई है अगर अनमॉडिफाइड है तो, या फॉलो ऑन ऑडिट में, तो आपको एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट दे देंगे। 3 महीने के अंदर अंदर सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट है तो फिर हम रीजन लिख देंगे कि अभी नहीं दे सकते, आपका फॉलो ऑन रिव्यू होगा फिर देंगे। ये सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या रहेगी? तो दिस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता है कि इसकी वैलिडिटी कब तक की है और जैसे ही वैलिडिटी खत्म हो गई फिर काम नहीं आएगा। हालांकि आईसीआई ने अभी एक्सटेंड किया है। सारे डॉक्यूमेंट जो प्रैक्टिस यूनिट सर्टिफाई करेगा इंटरवीनिंग पीरियड में ये इनवैलिड होंगे। इंटरवीनिंग पीरियड यानी कौन सा पीरियड है ये यूं समझ लीजिए, दिस इज द पीरियड विच इज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट। यानी एक तरह से अब पीयर रिव्यू कंपलसरी हो गया है और अगर आपका पीयर रिव्यू आपकी फर्म का नहीं हुआ है तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस या अमेंडमेंट के बाद ऐसा हो गया, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इनवैलिड हो जाएंगे, यानी कि आपको पीयर रिव्यू करवाना ही पड़ेगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स? तो ऐसे लिस्टेड कंपनी का ऑडिट है तो उसको करने के लिए पीयर रिव्यू आपकी फर्म का होना जरूरी है, तो अब आप नहीं कर पाओगे अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप पीयर रिव्यू ड्यू डेट से 1 महीने पहले अप्लाई करके, सर्टिफिकेट कम एक्सपायर होने से 1 महीने पहले कम से कम अप्लाई कर दो कि भैया हमारा पीयर रिव्यू करा दिया जाए, क्योंकि बोर्ड 30 दिन के अंदर अंदर पीयर रिव्यू फिर आपका इनिशिएट कर देती। ठीक है, चलिए। तो दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज। नॉर्मली सर्टिफिकेट में जो डेट होती है वो फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन टिल 3 साल की डेट दे दी जाती है कि इस समय का आपका सर्टिफिकेट वैलिड है। इसमें एक कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है, रिव्यूअर जब भी रिव्यू करेगा तो उसकी अप्रोच क्या होगी। तो ध्यान रखना उसकी अप्रोच किसी भी केस में ऐसी नहीं है कि उसको एक एक गलती निकाल के पिन पॉइंट करना है, उसको ओवरऑल सिस्टम्स देखना है और एक ओवरऑल सिस्टम प्रॉपर चल रहा है नहीं इस पर कमेंट करना है। इसके लिए सबसे पहले वो एंगेजमेंट लेटर अच्छे से देख ले जो आईसीआई के पास से आया है, जिसमें साफ साफ डिफाइन किया जाता है कि भैया पीयर रिव्यूअर का स्कोप क्या है। ये ध्यान रखना कि हमें हर प्रैक्टिस यूनिट के अश्योरेंस क्लाइंट का वर्किंग पेपर फाइल चेक नहीं करना है, यानी यहाँ सब कुछ जो होगा वो सिग्निफिकेंस और मॉड्यूलिटी के बेसिस पे होगा। देन व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको डिसाइड करना है कितनी अश्योरेंस एंगेजमेंट है जो आप रिव्यू करोगे, जो अभी अपन ने देखा
जिसके कुछ नियम है, जैसे कि ब्रांचेस आपके क्लाइंट की कितनी है, प्रैक्टिस यूनिट की कितनी ब्रांचेस है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या फीस जीएसटी है, क्लाइंट की नेचर ऑफ सर्विसेज क्या दी है, क्या फीस उनसे चार्ज करी है, क्लाइंट अपने आप में कितना बड़ा है, उसका एसेट साइज क्या है, ऐसे कई सारे फैक्टर्स के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे। पर ध्यान रखना आपको क्रॉस सेक्शन, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही एक इंडस्ट्री ले लिया, एक तरह के एश्योरेंस असाइनमेंट ले लिया। अगर आप टैक्स ऑडिट, कंपनी ऑडिट, जीएसटी ऑडिट, अलग अलग तरह के एश्योरेंस असाइनमेंट हैं, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कवर हो। हालांकि देयर इज नो लिमिट कि मैक्सिमम इतना सैम्पल साइज लिया जाएगा। ध्यान रखना कि आप यहाँ पे इंक्वायरी भी कर सकते हो अबाउट पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, अगर डॉक्यूमेंटेड अवेलेबल नहीं है तो रिकॉर्ड्स में कोई चीज़ ना मिले तो हो सकता है हर सिस्टम डॉक्यूमेंटेड ना हो, तो आप इंक्वायरी करके भी चेक कर सकते हो। इंक्वायरी करोगे तो फिर आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन और चेक करना पड़ जाएगा, अगर वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो। क्या पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, तो ऐसा नहीं है डॉक्यूमेंटेड नहीं मिला तो बोल के आगे भैया लिखा हुआ नहीं था तो खत्म हो गई बात। इसके अलावा आपका ऑब्वियसली प्रोफेशनल जजमेंट है कि आपको कितने कंप्लायंस या सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स लगाना है। कंप्लायंस प्रोसीजर्स प्राइमरली पॉलिसीज और प्रोसीजर्स प्रॉपर है या नहीं चेक करने के लिए लगाते हैं। सब्सटेंसिव ये देखने के लिए कि वर्किंग पेपर जो एश्योरेंस सर्विसेज प्रैक्टिस यूनिट ने दी है उनके क्लाइंट से रिलेटेड, उसको देख के असेस करना कि क्या उनका काम प्रॉपर है या नहीं है, यानी कि बेसिकली उनकी फाइंडिंग्स और उनके कंक्लूजन मैच हो रहे हैं या नहीं, टीपी का कंप्लायंस हो रहा है या नहीं, चेक करने के लिए। इसके लिए कहा गया है कि जब भी आप रिकॉर्ड्स इवैल्यूएट करते हो तो आप क्या कंसिडर करते हो। 1, कोई भी सिग्निफिकेंट इशू या मैटर, तो आपने वर्किंग पेपर फाइल चेक करी, तो सीके बिरला ग्रुप इज वन ऑफ द एश्योरेंस क्लाइंट्स ऑफ पीडब्ल्यूसी द प्रैक्टिस यूनिट। तो हमने चेक किया तो हमने उसमें देखा कि यार इसमें कोई मेजर इश्यूज खड़े हुए थे कि यार इसके ऊपर कंपनी टैक्स नहीं दे रही है, एग्जाम मान रही है, ऐसा क्यों। तो ऐसे इश्यूज हुए थे, तो ये रिजॉल्व कैसे हुए, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन वर्किंग पेपर फाइल में ही होगा। सेकेंड, आपने जो भी कंक्लूजन दिया है आपके एविडेंस उससे मैच होना चाहिए, यानी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू मैच योर एविडेंस है, यानी मैच योर ओपिनियन, ये आपको असेस करना है। और फाइनली जो सिग्निफिकेंट डिसीजंस लिए गए थे जहां मेजर प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व था, जैसे कोई गोइंग कंसर्न का इशू आ गया था क्लाइंट में, तो वो जजमेंट्स को स्पेसिफिकली आपको इवैल्यूएट करना है और डॉक्यूमेंट करना है। यानी ये अप्रोच है कि आपको ऐसे कोई बारीकी में एक एक चीज़ चेक नहीं करना है, आपको इन चीज़ों पे मेजरली फोकस करना है। कब? अपने रिव्यू के दौरान। तो ये अप्रोच ऑफ रिव्यूअर है, 5 पॉइंट्स। एंड इसके अलावा एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। ध्यान रखना लिमिटेशन है, ऐसा नहीं है कि किसी का पीयर रिव्यू हो गया तो एक 100% गारंटी है कि भैया सारे सिस्टम प्रॉपर है, फिर भी कोई वीकनेस हो सकती है जो छूट जाए। दीज आर इनहेरेंट लिमिटेशन। और पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू में मैंने इनिशियल स्टार्ट में आपको बताया था क्या डिफरेंस है, आई जस्ट काइंड ऑफ रिपीट इट, फिर अपन क्वालिटी रिव्यू देख लेंगे। And the difference is very clear कि peer review is basically a review of systems and procedures which is done not to identify mistakes and take penal actions against the practice unit but to improve the quality of services. It is a board of ICI and not involvement of, it has no involvement of central government or any regulatory bodies. So what it says is it's a review of systems and procedures. Sample audit files are inspected. Intention is not to find faults but help to develop better systems, improve the quality of services. It is just basically not like quality review. Quality review is basically like a penal action, deterrent है, वो आपके अगेंस्ट में एक्शन लेगा। तो QRB is set up by central government and ICI, ना कि सिर्फ ICI which is peer review only ICI. देन CA एक्ट के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूट करने की क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, जबकि पीयर रिव्यू बोर्ड इज ICI कॉन्स्टिट्यूटेड, 100% ICI के इसमें मेंबर्स होंगे। ये सुपरवाइजरी डिसिप्लिनरी फंक्शंस कैरी कर रही है जिसका मेन उद्देश्य गलतियां ढूंढना है और डिसिप्लिनरी एक्शंस इनिशिएट करना है। तो ये आपको इससे थोड़ा सा आइडिया लग गया। जितने क्वेश्चंस हमारे दिए हैं एक बार क्विकली कुछ मैंने साथ साथ में देख लिए, कुछ और देख लेते हैं। टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स पे नोट तो अपन ने डिस्कस किए थे, वो 6 पॉइंट्स आपको कवर करना पड़ेंगे कि TPE में ये सब कवर होता है। स्टडी मटेरियल 2021 में भी ये क्वेश्चन शामिल किया गया है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू। तो स्कोप में अपन ने देखा था कि 3 चीज़ें ऐड करी गई थी तो वो आपको लिखना पड़ेगा। तो 1 TP मेजर सिस्टम्स क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्टिंग ऑफ असाइनमेंट्स, ये 3 बेसिक चीज़ें और 3 चीज़ें अपन ने ऐड करी थी। चलिए देन पीयर रिव्यूअर का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, डायरेक्टर लिख सकते हो आप। एलिजिबिलिटी ऑफ रिव्यूअर कौन होगा, एक्चुअली नेक्स्ट पेज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। देन रिपोर्टिंग स्टेज पीयर रिव्यू में क्या होगा, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ सैंपल RTP नवंबर 20 में क्वेश्चन था। ये आपके सिलेक्शन ऑफ सैंपल के कुछ बेसिस हैं। देन आपको
अपॉइंट किया है पीयर रिव्यूअर शिवम एंड कंपनी, उसने लिस्ट ऑफ सर्विस दी है जिसमें ड्यू डिलिजेंस सर्विस भी है। CIS इज इन प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग कौन सी सर्विसेज सिलेक्ट करें, आपको डिसाइड करना है, मदद करना है उसकी कि वो कैसे सिलेक्ट कर सकता है। जनवरी 21 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो बेसिकली 10C3 यही वाला पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और स्पेसिफिकली लिखना है कि ड्यू डिलिजेंस सर्विसेज को कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो एश्योरेंस सर्विस में कवर नहीं होता है। एक्सप्लेन द स्टेप वाइज अप्रोच विच इज फॉलोड बाय पीयर रिव्यूअर, तो अप्रोच ऑफ रिव्यूअर में ये पॉइंट नंबर 11 आपका आंसर बनता है। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ रिव्यू, ध्यान रखना किस चीज़ में क्या लिख रहे हैं, अपन ने पढ़ा भी डिस्कस किया। देन कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस बाय पीयर रिव्यूअर, नेचर ऑफ एविडेंस कलेक्शन कैसा होगा, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो कलेक्ट कर सकता है। देन a practicing chartered accountant is appointed to conduct peer review of another practicing unit. What areas A should review an assessment of independence of practice unit? Or write a short note on areas to be reviewed in assessment of independence of practice unit while conducting peer review. तो इंडिपेंडेंस चेक जब आप करेंगे तो इंडिपेंडेंस चेक में किन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, तो दिस इज बेसिकली वन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इन फैक्ट वील जस्ट क्विकली काइंड ऑफ कवर दिस अप। सबसे पहले आपको चेक करना है क्या प्रैक्टिस यूनिट के पास एक पॉलिसी है इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी की, किसके लिए, फॉर ऑल मेंबर्स, पार्टनर्स एज वेल एज स्टाफ, और कौन उसका ख्याल रखता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में नॉर्मली हम QCPP में डाल देते हैं कि भैया इंडिपेंडेंस इज टू बी चेक्ड वाइल एक्सेप्टिंग द ऑडिट एंड थ्रू आउट द ऑडिट, और लीडर की जिम्मेदारी होगी कि कहीं भी कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस हो तो उसको आइडेंटिफाई करे और करेक्टिव एक्शंस ले ले। तो दिस इज वन थिंग विच वील हैव टू चेक। सेकंड, does the PU communicate these policies and expected standards to all staff, क्या ये well communicated है, क्या इसका compliance practice unit में वो जो भी लीडर है वो मॉनिटर कर रहा है या नहीं कर रहा है, और क्या पीरियोडिकली हमारे क्लाइंट से एसोसिएशन रिव्यू होते हैं अलॉन्ग विद नेटवर्क फर्म्स टू चेक इंडिपेंडेंस मेजर हो रही है नहीं। तो ये एक इंडिपेंडेंस वाला एडिशनल पॉइंट है। दिस इज ऑल विच इज़ देयर। इसके अलावा आपको मैं क्विकली एक काम और करता हूँ, चलिए ये ICI की ऑनलाइन में देख रहा हूँ। दिस इज बेसिकली द ICI booklet on MCQs and case study scenarios which has some 100 individual MCQs जो आप खुद देख लेना। case study based इसके ऊपर there is one peer review based case study जिसके ऊपर based ही RTP में क्वेश्चन था और उसी के ऊपर based in fact एग्जाम में भी peer review की एक पूरा ये case study आया था, इसी को अपन डिस्कस कर रहे हैं। Let's see this. Shivam and Company LLP is a large firm of chartered accountant based out of Delhi NCR. Firm has 6 offices in India, Delhi, Noida, Bangalore, Calcutta, Chennai, Chandigarh, 35 partners, 250 staff size, offering various services to its client and has accordingly set up separate department for those services which are headed by partners. The firm has client both listed and unlisted companies. तो listed company होने से public interest entity आ गई तो ये level 1 unit हो गया। इसका level 1 unit होने का कारण क्या है, इसका listed company का client। इनफैक्ट आप देखना आपको ये सब पढ़ के लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत बड़ी CA फर्म है तो इसको प्रैक्टिस यूनिट अगर कैटेगराइज करना है तो लेवल 1 में होगा, पर कहीं पे भी लेवल 1 में हम वी डू नॉट क्लासिफाइड बेस्ड ऑन व्हाट, लेवल 1 क्लासिफिकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टनर, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। लिस्टेड है इस कारण से ये लेवल 1 हो गया क्योंकि आपके कुछ लिस्टेड क्लाइंट्स जिनको आप स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, रिस्क एडवाइजरी, ड्यू डिलिजेंस, टैक्स सपोर्ट सब की सारे सर्विसेज देते हो, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस विल नॉट गेट कवर्ड अंडर पीयर रिव्यूज। Firm also has a managing partner who sits in Chandigarh office. All in all, one can say it's an all solution firm as far as services of CA are concerned. तो सब तरह के काम ये करती है। It focuses significantly on quality and accordingly has set up various controls in place. It ensures engagement of each partner are reviewed in terms of quality of work by another partner of the firm independently every year. तो engagement quality control review जिसकी डिटेल हमें लेना पड़ती है, आपको याद होगा अपन ने पढ़ा था लिस्ट ऑफ एश्योरेंस क्लाइंट्स, आपने क्या पॉलिसीज और प्रोसीजर्स आप क्या बना रखे और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल के क्या रिव्यू आप क्या सेकंड पार्टनर रिव्यू के सिस्टम्स के ये बना रखे हैं। इट हैज सेट अप अ प्रोसेस एंड 1 or 2 एंगेजमेंट फाइल्स ऑफ पार्टनर इज सिलेक्टेड। क्वालिटी असेसमेंट ऑल्सो कैरीज वेट इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ पार्टनर्स। तो ऐसे सिस्टम्स हैं। यू बीन सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू विच वॉज कंडक्टेड 3 years बैक, 3 साल हो चुके हैं तो एक्सपायर हो गया वो। Year ended 31st March 2020, firm got an intimation for peer review on 1st July 2020, with which it
with which it was before time considering review is done only 3 years back. तो भाई before time नहीं है क्योंकि आप level 1 entity हो, level 2 होते तो आप 4 साल बाद भी कर सकते थे, हालांकि बोर्ड चाहे तो वो भी कम कर सकती है, बट अभी तो आप level 1 हो तो 3 साल में होना ही चाहिए. And was not due ऐसा फॉर्म को लग रहा है. फॉर्म discussed the matter with relevant authorities but no the authority does not change the stand. तो उन्होंने बोर्ड को बोला हमारा अभी क्यों करवा रहे हो, तो बोर्ड ने बोला भैया होगा. Process of peer review got started on 1st August 2020 and completed on 15 September. तो total time duration जो लिया वो 31 days of August and 15 days of September, which is total of 46, which is less than 90 days. तो this is okay. और ऑन साइट रिव्यू 1 अगस्त से 20 अगस्त तक चला, तो दिस इज 20 days, which is more than 15 days maximum limit, which is not okay. Since the firm was not happy with selection of engagement for review by peer reviewer and also faced some problems during the peer review process, it also consulted another firm of his friend. PU ने किसी अपने दोस्त की CA फर्म से बातचीत की है. शुभम दोस्त का नाम है, शुभम एंड एसोसिएट उसकी फर्म का नाम है. One of the engagements of Shubham and Associate was picked up for quality review by quality review board and this firm also faced various challenges. तो इस क्वेश्चन में ये जो पोर्शन है, this looks to be more with respect to quality review, ये अभी अपन ने पढ़ा नहीं है. तो आपको बोला है you are required to advise on following matters. इसके ऊपर क्वेश्चन है. क्वालिटी रिव्यू वाले क्वेश्चन हम स्किप कर देंगे अभी फॉर द मोमेंट. Shubham Company LLP submitted a list of its assurance and due diligence services for selection of peer review. Peer reviewer may select sample out of assurance and due diligence. Out of assurance engagement, yes. Due diligence, no. On piecemeal basis of any service, no. तो B, क्योंकि due diligence specifically अपन ने डिस्कस किया था, स्कोप के बाहर है. Concern of Shubham Company LLP regarding selection of its peer review arose because it assessed itself as level 2 entity, which was different from assessment by peer review board. It should be level 1 based on criteria of level 1 and 2 given by ICAI regarding applicability of accounting standard? No. It should be level 2? No. It should be level 1 based on its engagement services? Yes, क्योंकि listed company के client है इसके पास. Level 2 तो ये तो यही नहीं हो गया. Shubham Company LLP also objected the time taken for peer review on site. However, as per peer reviewer, entire process got completed within 90 days from date of notifying the firm board selection for review. तो टाइम फॉर ऑन साइट रिव्यू शुड नॉट हैव एक्सटेंडेड बियॉन्ड 7 to 15 वर्किंग डेज. दिस इज ट्रू. ठीक है, अब उसमें वर्किंग डेज हमारे पास कितने हैं वो पता नहीं है, तो हम बोल रहे हैं भैया क्योंकि एक 15 अगस्त तो साफ साफ दिख ही रहा है वर्किंग डे नहीं है, प्लस 2 एक संडे भी आए होंगे, उसके बाद भी शायद लग रहा है कि भैया 15 दिन से ज़्यादा हो गए होंगे. सैटरडे वर्किंग होता है कि हमें पता नहीं, पर हम तो ये बोल देंगे भैया 15 दिन से ज़्यादा दिख रहा है, तो वो गड़बड़ है. The peer reviewer did not share any of his observation with Shubham and Company as draft and only final report was submitted. ये गलत है. तो ये बोल रहे हैं peer reviewer need not share draft report, गलत. Even final report is not required to be submitted to the firm, गलत. Needs to share draft report with the firm before finalization, बिल्कुल सही है. There are no reports in case of peer review. कैसी बात कर रहे हैं. शुभम वाले क्वेश्चन अभी छोड़ देते हैं, ये क्वालिटी रिव्यू से रिलेटेड है, तो दिस इज टू बी डिस्कस लेटर. इसी के साथ मैंने आपको क्या करवा दिया. I have got you covered the case study also, which is with respect to peer review given in the ICAI module. Study material 2021 के questions क्या cover हो गए. Each and every question is there in the drone chart, so you need not worry about it altogether. And you can very well and very easily kind of be rest assured कि हमने वो सारे questions cover कर लिए हैं. Nevertheless, just in case. ICAI के मॉड्यूल में अगर आप देखना चाहेंगे तो जस्ट लेट मी ओपन द ICAI वेबसाइट एंड लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू द क्वेश्चंस ऑन peer रिव्यू. ओके, तो peer रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू के क्वेश्चंस कलेक्टिवली साथ में दिए गए, जो आप देख लीजिएगा. आई एम जस्ट काइंड ऑफ शोइंग दिस टू यू हियर क्विकली. तो ये टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चंस हैं और इसमें अलग अलग चीज़ें दी गई है. ये सब आपके क्वेश्चंस हैं. इंडिपेंडेंस का असेसमेंट कैसे होना चाहिए, अभी अपन ने ड्रोन चार्ट में देखा, लास्ट वाला क्वेश्चन था वो. कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड होगी, स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू, टीपी क्या होता है,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिव्यूअर के लिए क्या होंगे, इनहेरेंट लिमिटेशन, पीयर रिव्यू के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, अच्छा क्वालिटी रिव्यू हो गया, ये पीयर रिव्यू के यहाँ तक के हैं आपके, इसके बाद के क्वालिटी रिव्यू के, ठीक है। चलिए, तो ये 5 क्वेश्चंस सभी देखा आपने ड्रोन चार्ट में कवर्ड है। दिस इज टू काइंड ऑफ कन्फर्म इट टू यू कि सारे 100% क्वेश्चंस जो अपने अपडेटेड ड्रोन चार्ट्स हैं स्टडी मटेरियल के A to Z एवरीथिंग ऑफ दैट इज ऑलरेडी काइंड ऑफ कवर्ड इन द ड्रोन चार्ट्स। और ये हमारी खूबी है स्पेशल ऑर्डर ड्रोन चार्ट्स की कि हम क्वेश्चंस अलग से नहीं लेते, क्योंकि ये सब डायरेक्ट होते हैं, इसमें कोई एनालिसिस नहीं होता है। तो जो पेज में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको वहीं पे उसके नीचे दिखा दिया जाता है, एक्सेप्ट इन सम केसेस जहाँ पे पेज हो सकता है आगे पीछे हो, बट क्वेश्चन सारे कवर कर दिए जाते हैं। चलिए, तो that kind of completes your whole discussion on peer review. It's been done in well good details, and these charts are something which are going to be very very useful and helpful for you to kind of cover these things up. And obviously बात है कि I think giving you word file documents is not required, क्योंकि these are not just summary charts, these are comprehensive notes. आप चाहो तो स्टडी मटेरियल से कंपेयर कर लेना। आई एम श्योर आप ऑलरेडी वैसा कर चुके हैं, उसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि कंटेंट इसका पूरा का पूरा है, लैंग्वेज भी पूरी की पूरी है, इज दैट इसको इस फॉर्म में लिया गया है सो दैट इट इज़ ईजी टू काइंड ऑफ लर्न एंड रिमेंबर एंड रिवाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिफोर योर एग्जाम्स, ठीक है। चलिए, तो दिस कंप्लीट्स योर पीयर रिव्यू, नाउ विल टेक अ ब्रेक एंड आफ्टर दैट वील कम टू क्वालिटी रिव्यू। थैंक यू।